नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीएनएम टीवी पर अब वक्त है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों का, तो आइए डालते हैं नजर कुछ खास खबरों पर। भाजपा से नाता तोड़कर जयनारायण व्यास जुड़े कांग्रेस में, मल्लिकार्जुन की उपस्थिति में पहना खेस। सांवली में केतन इनामदार को जिताने आए अमित शाह, केतन इनामदार पर ली चुटकी। और पादरा में धार्मिक कार्यक्रम के बाद 100 लोगों को फूड पॉइजनिंग, पीड़ितों का इलाज जारी। देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के वडोदरा जिला की सांवली बैठक पर भाजपा प्रत्याशी केतन इनामदार के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे। वडोदरा की सांवली में भाजपा की ओर से फिर एक बार केतन इनामदार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप सिंह राहुल जी उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केतन इनामदार के प्रचार के लिए सांवली पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि मटका खरीदते वक्त भी चौकसी बरतते हो तो यह तो विधानसभा की बात है। विधानसभा में केतन के जैसा प्रत्याशी आपको नहीं मिलेगा। केतन इनामदार के दबंग स्टाइल पर अमित शाह ने चुटकी लेते हुए कहा कि केतन तू तो बहुत बड़ा हो गया है। यहाँ जैसे जोर जोर से बोलता है वैसे ही सचिवालय में भी जोर जोर से बोलता है और सबको डराता है। दरेक गामना मारा प्रतिनिधिओ बैठा छे, खूब मोटी संख्या में हमारी बहनों बैठी छे। एक गाम, एक फड़िયું કેતનભાઈ ક્યારે વેરો આતરો નથી કર્યો, તમારી સાંસદે ક્યારે વેરો આતરો નથી કર્યો, અને જ્યારે હવે ઋણ ચૂકવવાનો આપણો બધાનો સમય આવ્યો છે ત્યારે એવી બહુમતીથી આપણે સૌ મતદાન કરીએ। 5મી તારીખે આપ સૌએ મતદાન કરવાનું છે। કોઈ ઘર ન રહી જાય અને કેતનભાઈ હંમેશા કોઈ કાર્યક્રમ કરે એટલે સાવલીમાં તો આ કેતનની વ્યવસ્થા છે, આપણે તો આનાથી ટેવાય નથી ને। આ કેતનને તો મતદાનમાં સૌથી વધારે લીડથી અમે સાવલીમાંથી કમળ જીતાડીને મોકલીશું, એવું આપ કમિટમેન્ટ કરો છો ને? પાકું? કે ભારતીય જનતા પાર્ટી એ આપણા દરેક જણના હૃદયની અંદર છે કે નહીં? આ વખતે આપણે ઇતિહાસ બનાવીશું કે નહીં બનાવીએ? બનાવીશું। આપણા સાહેબને હું કહું કે અમારું 135 વિધાનસભાનું કમાડ આ વખતે જંગી બહુમતીથી 182 વિધાનસભાની અંદર જીતીને કઈ આગળ આવશે અને અમે તમને આ ભેટ આપીશું એવું કહી દઉં। અવાજમાં આ અવાજ ના ચાલે પેલા કહું કે ના કહું? બે મુઠ્ઠી બંધ, બે હાથ અંદર અને જોરથી કે સાહેબ આ કમાડ તમારે અમારે આપવાનું છે અને આમાં અહીંયા પ્રત્યેક બેઠેલો કાર્યકર્તા, અહીંયા બેઠેલો આપણો મતદાતા હજુ 7 દિવસ બાકી છે। એક દિવસ એક ઘરે જઈને આપણે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કમળ માટે અને તમારા દીકરા કેતન માટે આશીર્વાદ માંગવાના છે। માંગો કે નહીં માંગો? માંગો ને? હાકડમ મારું કે પાઘડી બંધ? હાકડમ કે પાઘડી બંધ? સાહેબને કહીએ કે અમે તો હાકડમ વાળા છે। કોણ હાકડમ હોય કે આખું કામ હોય ને હાકડમ કહેવાય, અને પાઘડી બંધ એટલે ઘરથી કેક દેના। આપણે હાકડમ કે પાઘડી બંધ? હાકડમ કે પાઘડી બંધ? સાહેબને હું પણ કહું છું કે મારા વાળા બોલેલું ફરે ના થાય। 135 વિધાનસભાનું કમળ 182 વિધાનસભામાં સાહેબ સૌથી હાઈએસ્ટ વોટથી જીતીને તમારી પાસે આવે। કેતન અત્યારે ભાષણ આપતો તો ભાષણ સાંભળ્યું, કેતન તું બહુ મોટો થઈ ગયો ભાઈ, તમે બધાએ મોટો કર્યો કેતનને। એના ભારતીય જનતા પાર્ટીની ખૂબી છે મિત્રો, અહીંયા જાતિવાદ, વંશવાદ એના આધારે કાર્યકર્તાનું મૂલ્યાંકન નથી થતું, કાર્યકર્તામાં કેટલું પાણી છે એના આધારે। કેતને આ ક્ષેત્રની અંદર ખૂબ મોટા વિકાસના કામો કર્યા છે। વિશ્વામિત્રી નદીનો કિનારો તમને બધાને બહુ ઓછા લોકોને ખબર હશે
મહાન ગાયત્રી મંત્રની રચના આજ વિશ્વામિત્રી નદીના કિનારે થઈ હતી અને સમગ્ર વિશ્વને શરીર વિજ્ઞાનનો એક અદ્ભુત મંત્ર આપ્યો. આ વિશ્વામિત્રી નદીના કિનારે અનેક ઋષિઓ મુનિઓએ તપસ્યા કરી ભારતની સંસ્કૃતિને સનાતન ધર્મને પુષ્ટ કરવાનું કામ કર્યું. અને આજ વડોદરા ગ્રામીણ જિલ્લાએ ગુજરાતની રચના પછી ગુજરાતની અંદર વિકાસ માટે સૌથી મોટું યોગદાન કરવાનું કામ પણ આજ મારા વડોદરા ગ્રામીણ જિલ્લા સાવલી તાલુકા વાળા ભાઈ બધા ભાઈઓ બહેનો જેમની ઉંમર 20 વર્ષથી મોટી હોય 20 વર્ષથી નાના લોકોને તો ખબર જ નહીં હોય કે અહીંયા ગુજારો આવું હતું. કારણ કે તમે તો જન્મ્યા છો ભાજપના રાજમાં. 1990 થી આ કોંગ્રેસના કેટલાય હવા ત્યાં મારે જાતિવાદ ફેલાવે, જૂઠા બોલે, એમની વોટ બેંકને લલચાવે. પણ 1990 થી ગુજરાતની પ્રજા ક્યારેય જીતાડતી નથી મિત્રો. 1990 થી 2022 સુધી જ્યાં ભારતીય જનતા પાર્ટી રહી ત્યાં વિજય રહ્યો છે. ગુજરાતમાં વિકાસ થાય, બનાસકાંઠામાં વિકાસ થાય તો સાવલી વાળાનું કારખાનું ચાલે કે ના ચાલે ભાઈ? ડભોઈ વાળાનું ચાલે કે ના ચાલે? વાઘોડિયા વાળાનું ચાલે કે ના ચાલે? પણ આ કોંગ્રેસ વાળાને અક્કલને 300 ગામનું અંતર છે ભાઈ, 300 માઇલનું અંતર. કોંગ્રેસ અને અક્કલ બેની વચ્ચે 300 માઇલનું અંતર છે. ક્યાંથી મેળ પડે એમ સમજે ભાઈ? સાવલીમાં આ કેતન અહીંયા તમારી જેમ જોર જોરથી બોલે ને એમ સચિવાલયમાં જોર જોરથી બધાને પીવડાવ. એટલે કોઈ બીજા જગ્યાએ જવાનું કામ એ સાવલીમાં આવી જાય. સૌથી વધારે નિસાર અગર કોઈએ ખોલી હોય ને 10 વર્ષમાં તો કેતને સાવલીમાં સૌથી વધારે બહેનો બેઠી છે. આટલી બધી માટલું ખરીદો તો ટકોરા મારો છો ને, જરા કોરતો ઘરા મારો છો કે નહીં? તો 250 રૂપિયાના માટલાને 10 વાર ટકોરા મારો છો. આ તો વિધાનસભાનું મુહૂર્ત થયો નક્કી. કેતન આગળ આવી, આગળ કેતન બરોબર. કેતન તો મુહૂર્ત તો નહીં મળે. કેતનને જીતાડશો? જોરથી બોલો, બે હાથ ઉપર કરીને બહેનોએ બોલે કેતનને જીતાડશો? કમલના નિશાન પર વોટ આપશો? ભાજપની સરકાર બનાવશો? ભૂપેન્દ્રભાઈને મુખ્યમંત્રી बनाओ. गुजरात में भाजपा सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे जय नारायण व्यास ने भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में कांग्रेस का हाथ थाम लिया है. गुजरात में विधानसभा चुनाव के माहौल के बीच दल बदलने का मौसम भी लगातार जारी है. भारतीय जनता पार्टी के राज में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉक्टर जय नारायण व्यास भाजपा से नाराज होकर पार्टी छोड़ चुके हैं. उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में कांग्रेस का खेस धारण कर लिया है. इस मौके पर एपीएमसी के चेयरमैन समीर व्यास भी कांग्रेस पार्टी में जुड़े हैं. 32 वर्षों तक भाजपा में रहने के बाद जय नारायण व्यास ने कांग्रेस पार्टी में जुड़कर सिद्धपुर के कांग्रेस प्रत्याशी चंदनजी ठाकुर का समर्थन किया है. इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गुजरात की जनता इंटेलिजेंट है और इस बार गुजरात में परिवर्तन होगा. ये चुनाव तो गुजरात के जनता का चुनाव है और गुजरात की जनता इतनी इंटेलिजेंट है, सारे देश को मार्गदर्शन करने वाले लोग गुजरात में हैं. उनको चाहे किसी में भी हो, स्किल डेवलपमेंट अब आया होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा स्किल अगर कहीं है तो गुजरात में है. तो इसीलिए तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये फैल गए हैं और हर जगह वो काम करते हैं. अपने अनुसार वो पद भी पाते हैं
और हर जगह वो आज बिजनेस में भी छाए हुए हैं, प्रोफेशन में भी छाए हुए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसके पहले भी छाए हुए आज भी हैं। तो ये सारी चीज़ें गुजरात में आपको मिलेंगी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आना, इस पूज्य महात्मा गांधी जी के राज्य में यूं तो वो दुनिया के बादशाह है महात्मा गांधी जी, उनके लिए मैं सीमित नहीं करना चाहता हूं सिर्फ गुजरात के लिए, और वैसा ही वल्लभ भाई पटेल जी। लेकिन चंद लोग बार बार उन्हीं का नाम लेकर कांग्रेस पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, और आज मुझे पता चला कि इस चुनाव में गुजरात की जनता कांग्रेस के फेवर में निर्णय ले रही है, इसका अंदाजा बीजेपी को लगा है। जो लोग कलंकित है समझकर आपने केस डाला, ईडी की केस, इनकम टैक्स की केस, सीवीसी की केस, और कौन से कानून है ना, सब आपने डाल के उन लोगों को, चंद लोगों को कलंकित किया, चंद एमएलए को, चंद एमपीज को, चंद राज्यसभा मेंबर्स को। लेकिन जब आपके पार्टी में जब ज्वाइन हो गए, वो जैसा कि बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन में डाल के वो क्लीन हो गए। ये कलंकित यहाँ थे, वहां जाते ही वो पूरे स्वच्छ बन गए। वडोदरा के पादरा के गोविंदपुरा विस्तार में धार्मिक प्रसंग में प्रसाद खाने पर फूड पॉइजनिंग हो जाने के कारण 100 से अधिक लोगों की तबीयत खराब हो गई थी। पादरा के गोविंदपुरा विस्तार में धार्मिक अवसर नियाज में दिए गए प्रसाद को लेकर फूड पॉइजनिंग होने से 100 से अधिक लोगों की तबीयत खराब हो गई थी, जिन्हें तत्काल पादरा के सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया गया और कुछ लोगों को डबासा के पास आई क्रॉस वर्ल्ड हॉस्पिटल में भी शिफ्ट किया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही आरोग्य विभाग के अधिकारी, प्रांत अधिकारी, टीडीओ, नगरपालिका, तालुका हेल्थ ऑफिसर और मामलतदार मौके पर पहुंच गए थे। वहीं वडोदरा जिलाधीश भी पादरा अस्पताल में मरीजों की खबर लेने पहुंचे। स्थानीय अग्रणी भी स्थल पर पहुंचे। इस घटना की गंभीरता के मद्देनजर सरकारी अस्पताल के 6 मेडिकल ऑफिसर समेत आसपास की पीएचसी एम्बुलेंस को स्टैंड बाय पर रखा गया था। पादरा तहसील हेल्थ ऑफिसर के अनुसार इस फूड पॉइजनिंग में 123 लोग असरग्रस्त हुए हैं, लेकिन फिलहाल सभी ठीक हैं और अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिए गए हैं। आज अपना अत्यारे 10:30 बजे लगभग पादरा अर्बन शहरी विस्तार में गोविंदपुरा एरिया है, ત્યાં ડૉક્ટર અબુ બકર સૈયદ અલીકર નામના એક ડૉક્ટર હતા। ત્યાં એક સામાજિક પ્રસંગ હતા। એ પ્રસંગમાં ખીર કંઈ ખવડાવવામાં આવ્યા હતા। એ ખીર ખાવ્યા પછી લગભગ અડધો કલાક પછી ડાયરિયા વોમિટિંગની કમ્પ્લેન લઈને 130 જે પેશન્ટ અહીંયા આવ્યા હતા સરકારી દવાખાનામાં, જેમાં 60 પેશન્ટના આઉટડોર પેશન્ટ તરીકે ટ્રીટ કરીને ઘરે મોકલી દેવામાં આવેલ છે અને 63ના ઇન્ડોર કરવામાં આવે, જે પૈકી 22 ક્રોસ રોડ હોસ્પિટલમાં ગયા છે અને 6 જે છે यहाँ जीवन ज्योत हॉस्पिટલમાં છે। બધા પેશન્ટ સ્ટેબલ છે, કંઈ કોઈ કેઝ્યુઅલિટી નથી। અત્યારે ઇન ડિટેલ માહિતી હું લઈ રહ્યા છે, એ આવ્યા પછી ઇન ડિટેલ માહિતી સાથે આપશે બધાને અવગત કરવાનું છે। અહીંયા અત્યારે આપણા કલેક્ટર સાહેબ, ડીડીઓ સાહેબ, એસડીએમ સાહેબ, સીડીએચઓ મેમ, 4 તાલુકાના ટીએચઓ, આપણા પીએસસીના જેટલા ડૉક્ટર છે એ એમ્બ્યુલન્સ બધા અહીંયા બોલાવી લીધામાં આવેલા હતા। એટલે શિફ્ટિંગ પેશન્ટ શિફ્ટિંગ કરવામાં કોઈ તકલીફ નહીં અને વ્યવસ્થિત રીતે બધા મેનેજમેન્ટ થઈ ગયા છે, કોઈ કેજ્યુઅલિટી નથી અત્યાર સુધી। આજ રોજ પાદરામાં ધાર્મિક પ્રસંગ એટલે મુસ્લિમ સમાજમાં પ્રસાદી રૂપે નિયાત તરીકે પાદરામાં પ્રસંગ હતો। એની અંદર મુસ્લિમ સમાજના 123 બહેનો, છોકરાઓ અને પુરુષો ને તાત્કાલિક
પાદરા સરકારી દવાખાનામાં ક્રોસ રોડ ને બીજી અન્ય પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલની અંદર આજે એડમિટ કર્યા હતા. સાથે સાથે આરોગ્ય ખાતાના અધિકારીઓ, ડૉક્ટર સાહેબો બધા તંત્રના કામે લાગી ગયા હતા. આજે એક સામાજિક પ્રસંગ પાદરાનો હિન્દુ મુસ્લિમની એકતાની અંદર ભેગા થઈને છોકરાઓને, બાળકોને અને સ્ત્રીઓને જે તાત્કાલિક સારવાર મળી ગઈ છે, જેથી પાદરાની કોઈપણ હોસ્પિટલમાં આજે ગંભીર જેવો કેસ નથી, નોર્મલ પરિસ્થિતિમાં બધા છે. આજ એક ઉદાહરણરૂપ સામાજિક કાર્યકર, સામાજિક પાદરાના પ્રસંગમાં હિન્દુ મુસ્લિમનું એકતાનું રૂપ જોવા મળ્યું છે. આજ રોજ ગોવિંદપુરા વિસ્તારમાં એક અમારો મુસ્લિમ સામાજિક પ્રસંગ હતો, જેનામાં નિયાજ કે જે પ્રસાદીનો પ્રોગ્રામ હતો. એમાં કોઈક જમવાની અંદર કોઈ ફૂડ પોઈઝનિંગ જેવું થઈ ગયું, જેનાથી 100ની ઉપર વ્યક્તિઓને અલગ અલગ રીતે ઝાડા વોમિટને એનો કેસો થયેલા, જેને અમે સરકારી દવાખાનામાં લઈ ગયેલા. ત્યાર પછી અમે ક્રોસરોડ હોસ્પિટલમાં લાવેલા. ત્યાર પછી અમે ઉર્મીમાં અને માનસી હોસ્પિટલમાં લઈ ગયેલા, જ્યાં બધાની જે પરિસ્થિતિ છે એ સારી છે ને અત્યારે સ્ટેબલ છે. અત્યારે કોઈ પણ જાતનું ટેન્શન જેવું નથી બધા એ લોકોને. અને સમાજના બધા આગેવાનો, દરેક સમાજના હિન્દુ મુસ્લિમ આગેવાનોએ સાહેબે સહકાર આપ્યો છે અમને. અને અત્યારે બધી સ્થિતિ જે કંઈ છે એ સરકારી બી અમને સહકાર મળ્યો છે સરકાર તરફથી, ગવર્મેન્ટ તરફથી, અને બીજી બી સ્થિતિ સારી છે. અને અત્યારે બધા ક્રોસરોડ હોસ્પિટલમાં અત્યારે એમની છે, તો રાતે મોડા બધાને રજા આપી દેવામાં આવશે. હા સર, અમારે પાદરાની અંદર ગોવિંદપુરા વિસ્તારમાં જે નિયાજમાં બનાવ બન્યો એના અનુસંધાનમાં જે ઝાડા ઉલટી થઈ ફૂડ પોઈઝનિંગના લીધે, તેમાં બધા સમાજના આગેવાનોને બધાની રૂબરૂ આવી ગયા બધા, અને એ લોકોની હાજરીમાં તમામ કોમના આગેવાનો આવ્યા, તમામ સમાજના આગેવાનોની હાજરીમાં સારી ટ્રીટમેન્ટ આપી, બધા સહયોગ આપ્યો સારો. અને બધાને અમે સરકારી દવાખાનાના સ્ટાફે પણ બહુ સારી મહેનત કરી. અને ક્રોસ રોડ મળ્યા તો ક્રોસ રોડના જે કંઈક તબીબો હાજર હતા એ તમામે સારી વ્યવસ્થાને સહાય કરી. એમાં બધા સ્ટેબલ છે અને સારું એવું થઈ ગયું છે, બધાને કોઈ જાનહાનિ કે એવું થયું નથી. कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने गुजरात में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए तारीखों में भेदभाव के आरोप लगाए हैं. हम इलेक्शन कमीशन से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि आप तमाम सीसीटीवी फुटेज उस दिन की नॉमिनेशन भरने की निकालिए और मैच कीजिए. क्या 10 के 10 स्पॉन्सर वहां गए थे नॉमिनेशन भरवाने या नहीं गए थे? केवल 2 स्पॉन्सर गए थे, क्या बाकियों ने साइन घर से किए थे या नहीं किए थे, या बाद में साइन करवाए गए रात को बुलाकर उनके स्पॉन्सर्स को? ये जांच का विषय है. इलेक्शन कमीशन तुरंत इसकी जांच करे. दूसरी चीज, राजकोट शहर क्या तमाम शहरों से कंप्लेंट्स आ रही हैं कि वहां पर जो कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं और पुलिस के अधिकारी, ये दोनों खुल्लम खुल्ला बीजेपी के कैंडिडेट्स की मदद करते हुए पाए जा रहे हैं. राजकोट में जिस तरह से जगह जगह सरकारी इमारतों पर, सरकारी प्रॉपर्टीज पर बीजेपी के होर्डिंग पोस्टर्स लगते हैं, कैंडिडेट्स राइटिंग में कंप्लेंट करते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है. एक नहीं, सैकड़ों सरकार की प्रॉपर्टी, चाहे वो बिजली का स्टेशन हो, चाहे कोई सरकारी इमारत हो, उनके ऊपर जिस तरह से ये सब होर्डिंग्स बीजेपी के, बार बार हम राइटिंग में कंप्लेंट्स दे रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स कंप्लेंट दे रहे हैं, और सुमोटो भी इनको कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि भाई ये कौन परमिशन इनको दे रहा है कि आप कहीं पर भी होर्डिंग लगा देते हैं क्योंकि भाजपा का है. अब ये ट्रांसफार्मर के ऊपर होर्डिंग लगे, कौन से इलेक्शन अधिकारी ने इनको परमिशन दी है? और ये केवल 2-4 एग्जाम्पल नहीं, पूरे के पूरे आप गुजरात में कहीं चले जाइए, जैसे गुजरात जो है पूरी तरह से इनकी प्राइवेट लिमिटेड प्रॉपर्टी हो गई है. अधिकारी जो है, क्योंकि एक एक थाने में 10-10 साल से, एसएचओ 8-8 साल से बैठे हुए हैं, हेड कांस्टेबल, उनको एक एक नस का पता है वहां पर, और पूरी तरह से वो भाजपा में हो गए हैं और खुल्लम खुल्ला भाजपा की मदद कर रहे हैं. क्या आप क्लैरिफिकेशन दीजिए, आप एक राइटिंग में कंप्लेंट और दीजिए.
भाई जब इलेक्शन कमीशन आपसे रिप्लाई मांग रहा है तो थाना अध्यक्ष का फर्ज बनता है, और इलेक्शन कमीशन के आदेश पर अगर काम नहीं हो रहा है तो आज सरकार इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन इस मामले में सख्त कार्रवाई करे कि जो थाने हैं खास तौर पर उनमें साफ पता चल रहा है कि बीजेपी के कैंडिडेट्स की मदद करने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोटर्स को डराया जा रहा है। मोदी जी, अमित शाह जी की रैलियां जहां जहां होती हैं वहां पहले ही कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को थाने में बैठा दिया जाता है। पोरबंदर में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि 24-24 घंटे बैठाए रखो, अरेस्ट मत करो, क्योंकि अरेस्ट करोगे तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा। हमारे वोटर्स और जो प्रभाव रखने वाले लोग हैं उस इलाके के, उनको डराया धमकाया जा रहा है कि आप ये इलाका छोड़ दो, चुनाव के बाद आना आप यहां पर। पोरबंदर में 2 अधिकारी जिनका हम नाम लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, ये कीर्ति मंदिर पुलिस स्टेशन पुलिस इंस्पेक्टर है वीपी परमार, पोरबंदर कीर्ति मंदिर पुलिस स्टेशन। हम पूछना चाहते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन यहां की सीसीटीवी फुटेज थाने की मंगाएगा कि कितने लोगों को लाकर बुलाकर बैठाया गया, उनके ऊपर क्या क्या एक्शन हुआ, क्या सीसीटीवी फुटेज चलती हैं थानों की कि नहीं चलती हैं, क्या वो भी पूरी तरह से कमलम का अड्डा बन गए हैं। दूसरे हैं पोरबंदर में ही छाया नगर पालिका के चीफ ऑफिसर हैं मनन चतुर्वेदी। इन लोगों का ऐसे एग्जाम्पल 50 एग्जाम्पल हमारे पास हैं। इलेक्शन कमीशन इनमें ध्यान दे कि इनका जो काम करने का तरीका है वो पूरी तरह से भाजपा में है। हम राइटिंग में कंप्लेंट्स दे चुके हैं, जहां पर और होगा हम वहां पर भी देंगे। इसी तरह से रामपुर में 6 नंबर विधानसभा में वीरेंद्र सिंह जडेजा बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो फादर इन लॉ है एमएम जडेजा के जो पीआई है। सरेआम चुनाव प्रचार होता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की चीजें ये सिंबॉलिक नहीं, ये लोकतंत्र का पूरी तरह से मजाक है, मखौल है। ये इलेक्शन कमीशन में 2021 की कंप्लेंट है। गुजरात के वडोदरा शहर में 5 दिसंबर को मतदान प्रस्तावित है। इस मतदान में बहुमत से जिताने की अपील अकोटा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी चैतन्य देसाई कर रहे हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण यानी कि 5 दिसंबर को वडोदरा वोट करेगा। 5 दिसंबर को होने वाले मतदान को लेकर प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार तेज कर दिया गया है। वडोदरा के अकोटा विधानसभा से इस बार सीमा मोहिले की बजाय चैतन्य देसाई को मैदान में उतारा गया है। चैतन्य देसाई अकोटा विधानसभा के सभी क्षेत्रों में घूमकर अपना प्रचार कर रहे हैं। आज उन्होंने इलेक्शन वार्ड नंबर 10 और तांदलजा समेत के कई इलाकों में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्हें लोगों का अच्छा समर्थन हासिल हुआ। लोगों ने उन्हें तिलक लगाकर आरती उतारते हुए उन्हें फूल माला पहनाकर जीत की शुभकामनाएं दी। देखिए, आज अकोटा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन वार्ड नंबर 10 से हमने फेरनी शुरू की है और उसी के विस्तार में हम अपना कैंपेनिंग कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं तांदलजा की ओर, जहाँ पर काफ़ी लोगों ने उत्साह से बुलाया है हमें कि भाई आप भी यहाँ पर आइए, चलेगा नहीं कि आप कहीं यहाँ नहीं आओगे। और अभी तक जितना हमारा फेरनी हुआ है, कैंपेनिंग हुआ है, बहुत अच्छा प्रतिसाद है। लोग घर से बाहर आके बड़े ही हर्ष और उल्लास से टीका लगा रहे हैं, आरती उतार रहे हैं और फूलों की बौछार कर रहे हैं। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર, એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા.
વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सुरेंद्रनगर के धागंद्रा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया. गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 अंतर्गत 5 दिसंबर को मतदान प्रस्तावित है. इस मतदान को लेकर इन दिनों चुनाव प्रचार पूरे चरम पर है. इसी के तहत केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सुरेंद्रनगर के लिमड़ी में चुनाव प्रचार किया. यहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी किरीट सिंह राणा को जिताने का आह्वान करते हुए जनसभा को संबोधित किया. सभी मतदाताओं से भाजपा की जीत के लिए कमल के चिन्ह पर बटन दबाने की अपील की. બંને જે પ્રત્યાશીઓ ઉભા છે બંનેને મેં શુભકામના આપી છે આવનારા ચૂંટણીમાં જીત માટે. કિરીટભાઈ માટે તો 4 ટાઈમ આવીને હું પ્રચાર કરીને ગઈ છું. બંનેને મારી ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને ગુજરાતની પ્રજાને વિશેષ હું નિવેદન કરું છું કે આપ વિકાસ માટે દેશ માટે આપો અને ફરી એકવાર ભાજપની સરકાર બનાવો. सुरेंद्रनगर के धांगध्रा में भी स्मृति ईरानी ने भारतीय जनता पार्टी के हक में चुनाव प्रचार किया. 64 धांगध्रा हलवद विधानसभा बैठक को लेकर स्मृति ईरानी ने चुनाव प्रचार करते हुए इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने की अपील की. इस मौके पर हलवद के प्रत्याशी प्रकाश वर्मोरा समेत के भाजपा के नेताओं की उपस्थिति रही. हृदय ऊपर हाथ मूकीने कहो जो कांग्रेसनी सरकार होत केंद्रमा तो 28 महीना गरीब मानस ने मुफ्त में अनाज મળત. क्या गरीब को 28 महीने मुफ्त का अनाज उसके घर तक कांग्रेस की सरकार होती तो मिलता? नहीं मिलता. बधाने खबर है. हर हिंदुस्तानी को मुफ्त की वैक्सीन दी. 100 करोड़ हिंदुस्तानी 200 करोड़ मुफ्त की वैक्सीन. एक वैक्सीन का खर्चा 600 रुपया. તમે વિચાર કરી શકો કેટલા રૂપિયા લાગ્યા હશે. એ તો કિસ્મત છે हमारी सारी कि जिस गुजराती का बार बार मैडम अपमान करती उसी गुजराती के हाथ से भव्य राम मंदिर के निर्माण की पहली शिला अर्पित हुई. આ કોંગ્રેસીઓ હવે વારે ઘડે નવી નવી વાતો કાઢે. એમને પૂછવા ઈચ્છું છું વર્ષ 2008 માં મનમોહન સિંહજી બોલા कि भाई पेट्रोल न हूँ आवनारी पीढ़ी माटे 1,40,000 करोड़ ना बिल मूकीने जाऊं छू. फरी एक बार कहूं मनमोहन सिंह बोला था देश ने कि 1,40,000 करोड़ ना बिल आपी जाऊं छू आवनारी पीढ़ी भरजो. गुजरात के सुरेंद्रनगर के धांगध्रा में कांग्रेस द्वारा सभा का आयोजन कर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने चुनाव प्रचार किया. गुजरात में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इन दिनों सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं. इसी क्रम में धांगध्रा में कांग्रेस द्वारा सभा का आयोजन किया गया जिसमें गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर, उत्तर प्रदेश से आए कांग्रेस नेता लल्लूजी समेत के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे. इस मौके पर भाजपा के कुछ नेता कांग्रेस में शामिल भी हुए. कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी पर मोरबी पुल दुर्घटना, महंगाई, बेरोजगारी समेत के मुद्दों पर हमला बोला. कांग्रेस के 8 वचनों को जनता के सामने रखते हुए जगदीश ठाकुर ने
सौराष्ट्र में कांग्रेस की 54 सीट आने की आशा व्यक्त की। આખા ગુજરાતમાં આખું કોંગ્રેસનું નેતૃત્વ જ્યારે ચૂંટણી પ્રવાસ કરી રહ્યું છે, સમગ્ર ગુજરાતમાંથી કોંગ્રેસને જન આશીર્વાદ મળી રહ્યા છે, સપોર્ટ મળી રહ્યો છે, બળ મળી રહ્યું છે, તાકાત મળી રહી છે. અને પહેલા દિવસથી અમે કહીએ છીએ ભારતીય જનતા પાર્ટી સની સરકાર ગુજરાતમાંથી જાય છે. કોંગ્રેસ 125 સીટો સાથે સરકાર બનાવે છે અને છેલ્લા દિવસો છે ત્યારે ચૂંટણી પંચનો ઉપયોગ કરે છે, પોલીસની ધાક ધમકીનો પ્રયોગ ચાલુ કર્યો છે, લુખ્ખાને ગુંડાઓને મેદાનમાં ઉતારવાની વાતો ચાલી રહી છે. જ્યારે ભાજપ હારી રહ્યું છે ત્યારે છેલ્લા દિવસોમાં એ જે કંઈ કરીને ચૂંટણી જીતવા માગે છે એની રણનીતિ પણ અમે બનાવી છે અને ઈંટનો જવાબ પથ્થરથી કોંગ્રેસ આપી અને સરકાર ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની બનાવશે. वडोदरा की जाने माने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वाले धीरू मिस्त्री ने एक साथ कांग्रेस और जनसंघ की चुनावी डॉक्यूमेंट्री किस स्थिति में बनाई, इस पर उन्होंने VNM टीवी से खास बात की। बहुत पुरानी बात है, जबकि ये जो सोशल मीडिया इतने ज़ोरों शोरों में नहीं था, उस वक्त सिर्फ फिल्म का चलन था और थिएटर में फिल्म दिखाई जाती थी. तो 1973 में इलेक्शंस हुए थे विधानसभा के. तो भरूच डिस्ट्रिक्ट में हरि सिंह मेड़ा बहुत कदावर नेता थे. तो उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि भाई हम 5 कैंडिडेट्स भरूच डिस्ट्रिक्ट में से खड़े रहे हैं, तो उसके बारे में तुम्हें एक एक फिल्म बनानी है, 2-2 मिनट की फिल्म. तो उसके पैसे कितने होंगे? मैंने बोला साहब 5,000 रुपया मैक्सिमम और 4,000 रुपया मिनिमम. तो बोलता हमें 5 कैंडिडेट्स है, एक मगनभाई सोलंकी जम्बूसर से खड़े थे, मैं अंकलेश्वर से खड़ा रहने वाला हूँ, फिर हिम्मत भाई रजवाड़ी राजपिपला से खड़े रहने वाले हैं, और पीयूष ठाकुर करके वो भरूच में से खड़े रहने वाले हैं, और रघुवीर सिंह गोहिल जो कि झगड़िया में, जो कि मोरियाना के ठाकुर साहब थे, वो झगड़िया में से खड़े रहने वाले थे. इन 5 की फिल्म तुम बनाओ. तो मैंने बोला साहब डन. तो वो 5 का ऑर्डर लेके मैं गया बॉम्बे. इनसे पहले 2 दिन पहले कांग्रेस ओ यानी कांग्रेस ओ 73 में स्प्लिट हुई थी. कांग्रेस 71 में कांग्रेस आई एंड कांग्रेस ओ, कांग्रेस निजलिंगप्पा और कांग्रेस इंदिरा गांधी, ऐसा नाम था. तो कांग्रेस ओ के जो कार्यकर्ता थे, प्रदेश प्रमुख रामलाल परीख थे, और सेक्रेटरी थे ब्रह्म कुमार ब्रह्मभट्ट जो बाकी बाद में जीबी के चेयरमैन भी बने थे. उन्होंने मुझे बुलाकर एक फिल्म का ऑर्डर दिया था. बोलता कि कांग्रेस ओ के बारे में एक छोटी सी फिल्म बना के हमको दो. तो मेरे पास कांग्रेस आई के 5 कैंडिडेट्स का ऑर्डर था, कांग्रेस ओ का भी था. वो 2 दिन में इतने ऑर्डर्स मिले. मैं वडोदरा का हूँ, तो वडोदरा के उस वक्त भाजपा नहीं था, उस वक्त जनसंघ था, और उसके कर्ता हर्ता थे मकरंद देसाई. तो मकरंद देसाई मुझे बचपन से जानते थे, तो मुझे धीरिया करके बुलाते, धीरिया અહીંયા શું કરે છે? મેં કહ્યું રીતે 2 ફિલ્મોનો ઓર્ડર છે, મારી જનસંઘની ફિલ્મ બનાવી કાઢ. મેં કહું મકરંદની પૈસા થશે. तो एमना सेक्रेटरी अश्विन मेहता, बाद में कुछ डेप्यूटी मेयर बने थे, तो अश्विन उसको ऑर्डर दे दे. तो कहने का मतलब क्या है कि 3 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बनाने वाला है मैं एक. तो पूरे गुजरात में मेरी फिल्म चलती थी, और तीनों 3 पार्टीज अपने अपने चुनरी ढंढेरा में क्या सब वचन देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे. तो मेरा कहने का मतलब ये है, इंटरव्यू का मतलब मेरा मकसद ये है कि हर एक वोटर्स को अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, और जो अच्छा लगे, जो कैंडिडेट अच्छा लगे, जिसने कुछ काम किया है, जिसमें कुछ सेवा करने की वृत्ति हो, उसको आप वोट दो. ना कि तुम ढंढेरे से क्योंकि मैंने तो फिल्म तीन पार्टी के लिए बनाई थी, और हालांकि मैं कोई सी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर भी नहीं था. कहने का मतलब क्या है कि ये जो अभी जो सोशल मीडिया चल रहा है, तो वोटर्स या आम जनता अपने दिमाग चलाती नहीं है. कोई भी वीडियो आया सच मान लेते हैं, फिर वो वीडियो मुझे भेजते हैं, मेरे भाई ये फेक वीडियो है, ये गलत है, ये ऐसा है वैसा है, लाइक दैट तो मैंने भी 50 साल पहले इसका इस्तेमाल किया था, जो मैं आज आपको शेयर करना चाहता हूँ. तो मेरे पास इंदिरा गांधी के कुछ शॉट्स थे. इंदिरा गांधी उस वक्त कुछ गांधीनगर में आई थी, और मनु भाई पालखी वाला कुछ इलेक्शन में खड़े थे. तो मैं एक कैमरा, छोटा सा कैमरा था, आईमो कैमरा, वहाँ से शूटिंग कर रहा था. तो मैंने इंदिरा गांधी के लेफ़्ट टू द कैमरा कुछ बातें हुए, कुछ शॉट्स दिए थे. तो जो 5 कैंडिडेट्स खड़े थे, उनको मैं राइट टू द कैमरा बोला कि यहाँ से देख के बोलो, तुम कुछ भी बोलो. तो इंदिरा गांधी का लेफ़्ट टू कैमरा, कैंडिडेट्स का राइट टू कैमरा,
मैंने एडिट किया तो दर्शकों को लगता है इंदिरा गांधी के साथ बात कर रहे हैं, हालांकि वो एक कैंडिडेट बोला धीरू मिस्त्री, हमने साला इंदिरा जी से देखा तक नहीं। तो ये बात, ये पब्लिसिटी का ये स्टंट्स होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वोटर्स को अपना दिमाग लड़ाना चाहिए, देखना चाहिए कैंडिडेट कौन है, कैसा काम करता है और उसका क्या योगदान है समाज के प्रति, वो समझ के वोट देना चाहिए। गुजरात के जूनागढ़ के भैसान तहसील के छोड़वड़ी गांव में भाजपा का विजय संकल्प सम्मेलन पूरी तरह से फेल रहा। जूनागढ़ के भैसान तहसील के छोड़वड़ी गांव में भारतीय जनता पार्टी का विजय संकल्प फेल रहा। यहां भाजपा के उम्मीदवार हर्षद रेबड़िया के प्रचार को लेकर विजय संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री जयेश रादड़िया, गुजरात युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रशांत कोराट, विसावदर विधानसभा के उम्मीदवार हर्षद रेबड़िया समेत के अग्रणी और कार्यकर मौजूद थे, जिसमें हर्षद रेबड़िया का प्रचार किया गया। इस सम्मेलन में चनाका गांव के सरपंच समेत उनके समर्थकों ने भाजपा से जुड़कर केसरिया धारण किया और वाघनिया गांव के सिपाही अग्रणियों ने भी भाजपा से जुड़कर भाजपा का खेस धारण किया। यह मुद्दा यह है कि राज्य के कैबिनेट मंत्री की मौजूदगी में केवल 30 से 40 अग्रणी और कार्यकर्ता के साथ तकरीबन 200 लोग ही यहां पर मौजूद थे। भले ही भाजपा में इतने सारे लोग जुड़े हों, लेकिन फिर भी भाजपा का यह विजय संकल्प सम्मेलन खाली कुर्सियों के साथ फेल रहा। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी प्रचार के लिए यहां नहीं पहुंचे। विधानसभा विस्तार भारतीय जनता पार्टी अमरा उम्मीदवार हर्षदभाई रेबड़िया समर्थन माटे आज मोटी मोड़ोपी और छोरड गामे आज मीटिंग लेवा माटे आव्युं हतुं। आ विधानसभा विस्तार आ वखते भारतीय जनता पार्टी अमरा उम्मीदवार हर्षदभाई रेबड़िया 100% जंगी लीड साथे जीतवाना छे। 2022 में भारतीय जनता पार्टी कोई कल्पना नहीं करी हुई एटली सीट साथेनी सरकार बनवा जई रही है અને એમાં વિસાવદર બેસાડ સહભાગી બને અને આવનારા દિવસોમાં જે ગુજરાત જે દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે એમાં પણ વિસાવદર બેસાડનો સહયોગ મળે માટે આજે હર્ષદભાઈ રેબડિયાના સમર્થન માટે આજે વિસાવદર બેસાડને આગળ આવ્યું છે। એક જ સમાજનો સ્ટેટસ કેવું છે? હર્ષદભાઈ પહેલા કોંગ્રેસમાં આ વખતે ભાજપે ટિકિટ આપી કે જે સમાજના જે મતદારો વધારે હોય ત્યાં સ્વાભાવિક કે ત્રણેય પક્ષો હોય તે પક્ષો ટિકિટ આપ્યું છે, એટલે એક જ્ઞાતિ બેઝ ઉપરની વાત છે। તો મારી સીટ ઉપર પણ ત્રણેય ઉમેદવાર એક સમાજના છે, એટલે એ તો જ્ઞાતિના જે મતદારો હોય એ પ્રમાણે ટિકિટની વહેંચણી દરેક પાર્ટી કરતી હોય। પણ જ્યાં અમારી પાર્ટીની વાત છે, ભારતીય जनता पार्टी ने कीधुं के आ विसावदर बेसाण विधानसभा में जंगी बहुमती साथे जीतशुं। गुजरात चुनाव में राजनेताओं द्वारा की जा रही धर्म की राजनीति लगातार चर्चा का केंद्र बन रही है। कुछ ऐसा ही राजकोट में सामने आया है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के माहौल के बीच राजनेताओं के तरह तरह के बयान चर्चा का केंद्र बन रहे हैं। कुछ ऐसा ही बयान आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में घर वापसी करने वाले इंद्रनील राज्यगुरु ने दिया है, जिनका मानना है कि अल्लाह और महादेव एक ही हैं। वायरल नहीं थी पण एनो एक कटको ज वायरल बीजेपी वाला करे। गुजरात में हारवा जई रहेली भाजप एना भ्रष्टाचार थी, एना पुल तूटे, एना रोडना गाबड़ा पड़े, दबावनी राजनीति, विकासना नामे कई नवुं नहीं, त्यारे ए लोको जुदा जुदा आसराओ गोतता होय छे। एक कांग्रेसमेन तरीके आ देशनी एकताथी ज आज़ादी आई थी, एकताथी ज चप्पल पहेरवाने नहोता, एनी बदले चंद्र उपर पण पहोंची गया अने वीजળી नहोती, नळमां पाणी नहोता, रोड नहोता। आ बधुं ज काम कांग्रेसे नो विकास कर्यो छे। अणु ताकात देशने बनावी दीधी, ए बधाने एक राखीने करी छे। आजे पण कांग्रेस माने छे के एक हशुं तो ज देशनो विकास छे। जे नफरतनी राजनीति फैलाववामां आवे छे ए देशने नुकसान करनारी बाबत छे। ए बात कांग्रेसे पकड़ी राखी है। मारो पण प्रयास ए ज हतो अने खरेखर हजी मानवता नहीं मळी। मानवता मळी होत तो मोरबीना ज्यारे पुल तूट्यो त्यारे मुस्लिमोए त्यां कूदी अने बधाने बहार काढ्या था। कोई पूछ्યું नहोતું कि आम तमे भाई मुस्लिम छो कि हिंदू छो। मानवता मरी नहीं लोकोमां।
આપણે લોહી ચડાવીએ ત્યારે આપણે નથી પૂછતા કે આ હિન્દુનું છે કે મુસલમાનનું છે. આપણે લોહી દઈએ ત્યારે પણ નથી પૂછતા કે આ કોને ચડશે. આ એકતાની વાત મેં ત્યાં કરી હતી. મેં એ વાત કરી હતી કે જો અલ્લાહ અને મહાદેવ જુદા હોત તો આપણા લોહી એકબીજાને ચાલત નહીં. આ વાત મેં ત્યાં કરી હતી. મેં ત્યાં એ વાત કરી હતી કે જો મને અલ્લાહનું નામ લેવામાં શરમ ન આવે તો તમને પણ મહાદેવનું લેવામાં આવે કે નહીં. ત્યારે મેં અલ્લાહુ અકબર કર્યું તો પાછળથી આખી 5000ની પબ્લિક એક હારે બોલી ઉઠી મહાદેવ હર. આ વાત वास्तविकता है. इस मामले भारतीय जनता पार्टी के गुजरात प्रदेश प्रवक्ता रजू ध्रुव ने धर्म की राजनीति करने के आरोप लगाए हैं. अब जो भारतीय जनता पक्ष ये तो विकासना मंत्रने आगळ लईने चालनारो पक्ष है અને અમારી પાસે જ્યારે વિકાસ પુરુષ એવા નરેન્દ્રભાઈ મોદી હોય અને ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ મુખ્યમંત્રી હોય ત્યારે અમારે કોઈ ગતકડાઓ કરવાની જરૂર નથી. જેણે જે બોલ્યા એમણે પાછું એના પછી વાળવાના પ્રયાસો કર્યા છે. આપ સૌ મીડિયાના મિત્રો પાસે એ પણ સૌ જાણે છે. મને લાગે છે કે તુષ્ટિકરણની રાજનીતિ આજ સુધી કોંગ્રેસ કરતી આવી છે. અમે તો સર્વ ધર્મ સંભાવમાં માનીએ છીએ. અમે તુષ્ટિકરણની રાજનીતિમાં નથી માનતા. દરેક ધર્મને દરેક પંથને અમે આદર આપીએ છીએ. गुजरात के वडोदरा शहर में आनंद आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 11वां स्थापना दिवस मनाया गया. इस मौके पर मोटिवेशनल स्पीकर जय वसावड़ा उपस्थित रहे. वडोदरा महानगर में सेवा कार्यों में अग्रसर आनंद आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया. अकोटा स्थित सयाजी नगर गृह में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों के लिए हैप्पीनेस होम स्वर्ग बनाने की घोषणा की गई. इसी के साथ आनंद आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट के स्थापक KS छाबरा की जीवनी पुस्तक का विमोचन किया गया. इस कार्यक्रम में अमूल के डायरेक्टर डॉक्टर RS सोढ़ी, मोटिवेशनल स्पीकर जय वसावड़ा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे. ઈશ્વરજી બધી વ્યવસ્થાઓ કેવી રીતે થશે? તો ઈશ્વરજીએ સંદેશો આપ્યો, चिंता मत करो, मेरे फरिश्ते आएंगे. तुम्हें उन फरिश्तों को ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ईश्वर जी कहते हैं. और अरविंद छाजेड़ जी के रूप में दक्षेश भाई के साथ इंदो भाई जी का वो सपोर्ट आके सामने खड़ा हुआ, जो आगे अपन बात करेंगे कि व्हाट इज द रोल दैट दे आर प्लेइंग टू आनंद आश्रम सेवा एंड ह्यूमैनिटी एट लार्ज. आशय सेवा निरंतर बहुत अच्छा चलती रही. समय कोरोना का आया और तब जाकर कहीं हमें आशय बच्चियों को सपोर्ट करें हम, पर धनराशि में थोड़ी सी हमें कमी महसूस हो रही थी. गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वडोदरा में DEO कार्यालय की ओर से युवा छात्रों को मतदान की प्रेरणा दी जा रही है. गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 इस बार 1 दिसंबर और 5 दिसंबर ऐसे 2 चरणों में आयोजित हुए हैं. वडोदरा में 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे. चुनाव में वोट डालने की प्रेरणा देने के लिए वडोदरा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कर्मचारी अलग अलग जगहों पर युवा छात्रों से हस्ताक्षर करवाकर उन्हें मतदान के लिए जागरूक कर रहे हैं. MSU के बाहर इन सरकारी कर्मचारियों ने युवा छात्रों को मतदान के प्रति जागरूक करते हुए उनसे हस्ताक्षर करवाए. हमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस से ऑर्डर मिला है कि हम जाके बच्चों को अवेयर करें कि मतदान करना वो उनकी पवित्र फ़र्ज है और वो जाके मतदान अवश्य करें. हमने करीबन 50 लोगों को समझाया है और वो लोग ने साइन करके दिया है. आज के दिन के लिए आज का दिन में इतने बच्चों को किया है. उसके पहले हमने 2-3 जगह और किया, रेलवे स्टेशन पे किया और सयाजी बाग है वहाँ पे गेट पे किया और वो लोगों को समझाया और लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं. बच्चे समझ रहे हैं और वो मतलब वोट करने के लिए काफ़ी उत्साहित है. હું અહીંયા MS યુનિવર્સિટી કોમર્સ ફેકલ્ટીમાં અભ્યાસ કરું છું. હું જ્યારે યુનિવર્સિટીમાંથી બહાર આવી રહ્યો હતો ત્યારે આ લોકો મતદાન જાગૃતિ અંગે જાગૃતિ ફેલાવતા હતા. તો મેં અહીંયા સાઇન કરી છે કે હું વોટ કરીશ
એ તો હું બધા જ યુવાનોને જે 18+ છે એમને કહેવા માંગુ છું કે એ પણ અવશ્ય વોટ કરે અને જરૂરથી વોટ કરે। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ब्राह्मणों की कमेटी बनाकर ब्राह्मणों के वोट लेने की रणनीति बनाई है, जिस पर राज्यसभा के भाजपा सांसद राम मोकरिया ने जानकारी दी। गुजरात में यूपी ની તર્જ ઉપરથી બ્રહ્મ સમાજની એક પ્રચાર કમિટી બની હતી યુપીમાં, અને એ યુપીમાં 4 લોકો જે હતા એમાંથી ગુજરાત બહાર યુપી બહાર મને એકને જ મોદી સાહેબ અને અમિત શાહ સાહેબે એપોઇન્ટ કરી હતી। એ જ તર્જ ઉપર ત્યાં ખૂબ સફળતા મળી બ્રહ્મ સમાજના માધ્યમથી પાર્ટીને। એ તર્જથી નડ્ડાજીએ અને મોદી સાહેબ અને અમિતભાઈએ અહીંયા ગુજરાતમાં પણ આ કમિટી બનાવી છે અને એ કમિટીના ચેરમેન તરીકે મને મૂક્યા છે। મારી સાથે રંજનબેન ભટ્ટ સંસદ સભ્ય, ભાર્ગવભાઈ ભટ્ટ મહામંત્રી તથા યજ્ઞેશભાઈ દવે, આપણા બેન વ્યાસબેન છે અને વિનોદભાઈ દેસાઈ સાઉથ ગુજરાતના। આ 6 લોકોની ટીમ બની છે। એ અલગ અલગ ઝોનમાં કામ કરી રહ્યા છે, ભાજપનો પ્રચાર કરી રહ્યા છે। ક્લિયર રાષ્ટ્રવાદ માટે કોઈ પણ જાતના બાદ વિના માત્ર ને માત્ર ભાજપ માટે કામ કરવાનું અને ભાજપ સમર્પિત બ્રહ્મ સમાજની કમિટી બની। એવી જ કમિટી સૌરાષ્ટ્રમાં અહીંયા જીતુભાઈ અને કશ્યપભાઈ શુક્લ વગેરેની આગેવાન નીચે સૌરાષ્ટ્રમાં પણ બની છે। પ્રથમ વખત એવું બન્યું છે કે બ્રહ્મ સમાજને 14 ટિકિટ મળી છે, જે અમારા માટે ઐતિહાસિક પળ કહેવાય કે બ્રહ્મ સમાજને ભાજપમાંથી 14 ટિકિટ મળી છે। અમારા પ્રયત્ન એવા રહેશે કે 14 લોકો ચૂંટાય અને ધારાસભામાં સ્થાન ગ્રહણ કરે। ઉપરાંત જ્યાં જ્યાં બ્રહ્મ સમાજ સિવાયના ભાજપના કેન્ડિડેટ છે એના બધા માટે સૌથી પહેલાં અમે ટેકો જાહેર કર્યો હતો। સૌથી પહેલાં ઉમેદવાર નક્કી ન થતા ત્યારથી જ અમે કામે લાગી ગયા છે। નાના કસ્બામાં બુદ્ધિજીવોનું સંમેલન, બ્રહ્મ સમાજના સંમેલનો કર્યા છે। ગઈકાલે અમરેલી હતું, આજે જામનગર છે, ભાવનગર છે, સોમનાથ છે, રાજકોટમાં પણ થયું। આ વિવિધ જગ્યાએ સૌરાષ્ટ્રમાં સંમેલનો જીતુભાઈની આગેવાની નીચે અને મારા માર્ગદર્શન નીચે થઈ રહ્યા છે। બ્રાહ્મણ હંમેશા રાષ્ટ્રવાદી રહ્યા છે, દેશને હિતમાં કામ કરે છે। બ્રાહ્મણ એ કે જેની સંઘની, RSSની, ભાજપની, જનસંઘની સ્થાપના કરનાર બ્રાહ્મણો છે। આઝાદીની લડાઈમાં પણ ખૂબ જ બ્રાહ્મણોનું યોગદાન છે। મંગલ પાંડેજીયા સૌથી પહેલા વીરગતિને પામેલા છે। વીર સાવરકરે ખૂબ કામ કર્યું છે દેશ માટે। એવા વિવિધ ક્ષેત્રમાં બ્રહ્મ સમાજનું સૌથી મોટું યોગદાન છે। गुजरात के महिसागर जिला के खानपुर तहसील के बाकोर पुलिस स्टेशन पर स्थित लंबू चेक पोस्ट से गुजर रहे डंपर से शराब का बहुत बड़ा जत्था बरामद हुआ है। विधानसभा के चुनाव को लेकर गुजरात में अंतर्राज्यीय सीमा पर सघन चेकिंग के लिए चेक पोस्ट बनाया गया है। यहाँ पर सघन चेकिंग होती है। कल रात तकरीबन 8:30 बजे राजस्थान सीमलवाड़ा की ओर से डंपर नंबर RJ02GB1795 लांभू चेक पोस्ट पर पहुंचा। यहाँ पर पुलिस ने जब इसकी जांच की तो इस डंपर में देसी बनावट की प्रांतीय शराब से भरे बक्से बरामद हुए। इस अवैध शराब को पुलिस ने जब्त किया है, जिसमें 11,700 शराब की बोतलें मिलाकर कुल 11,01,312 मूल्य की शराब और डंपर की कीमत मिलाकर नगद तकरीबन 21,01,912 रुपए का मुद्दा माल बरामद किया गया है। पुलिस ने कानूनी कार्यवाही करते हुए मूल राजस्थान के निवासी डंपर ड्राइवर मूलाराम भवराराम जाट को गिरफ्तार किया है और शराब बेचने वाले सीमलवाड़ा राजस्थान के निवासी प्रीतेश कलाल के खिलाफ प्रोहिबिशन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। गुजरात के वडोदरा के डभोई 140 विधानसभा मत क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शैलेश मेहता को जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। डभोई 140 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा उम्मीदवार शैलेश मेहता ने थुवावी जिला पंचायत बैठक के खानपुर, छतराल, सेजपुरा, डंगीकुआ, ठीकरिया, नारिया, अंगूठन, राजली में अपने समर्थकों और साथियों के साथ चुनाव प्रचार किया। यहां पर उन्हें बहुत ही जबरदस्त प्रतिसाद मिला। इस चुनाव प्रचार में उनके साथ कायावरोहण के डिप्टी सरपंच नीरव पटेल, नाड़ा के भावेश भाई पटेल, अंजेश भाई पटेल, वीरल पटेल, पिंटू पटेल और भारी संख्या में कई सरपंच और कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव में वे जंगी बहुमत से जीतेंगे। भारतीय जनता पक्षना उम्मीदवार तरीके ज्यारथी जाહેરાત થઈ ત્યારથી ડભોઈ વિધાનસભાના અનેક ગામોમાં ફરી રહ્યો છું। આજે
ધોવાવી જિલ્લા પંચાયતના ખાનપુર, છત્રાલ, અંગુટણ વગેરે ગામોમાં પેરણીની શરૂઆત કરી છે, ત્યારે આ છત્રાલ ખાતે પણ આપ જોઈ શકો છો કે મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો, આગેવાનો, શુભેચ્છકો એ ઉમેદવાર સાથે એટલે કે અમારી સાથે મોટી સંખ્યામાં જોડાઈ ઘેર ઘેર ડોર ટુ ડોર પ્રચાર કરી રહ્યા છે અને તમામને વિશ્વાસ છે કે આ વખતની જીત ઐતિહાસિક લીડથી, જેમ વડાપ્રધાન મોદી સાહેબે વડોદરામાં કીધું છે કે વિક્રમજનક મતદાન કરો અને કમળના નિશાન પર કરો, એ પ્રમાણે આ વિસ્તારમાંથી વિક્રમજનક મતદાન થશે અને કમળના નિશાન પર થશે અને भारतीय जनता पक्ष जंगी बहुमती से जीत। वहीं दूसरी ओर डभोई में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। तालुका पंचायत में 2 बार सदस्य और कारोबारी चेयरमैन रह चुके राजू महंत छतराल गांव के पूर्व सरपंच कमलेश वालंद, सेजपुर गांव के सरपंच जिग्नेश वसावा, पूर्व सरपंच जयंती वसावा समेत 300 समर्थक भाजपा में जुड़े। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शैलेश मेहता के हाथों उन्होंने केसरिया केस धारण किया। कांग्रेस को एक और झटका मिलने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शैलेश मेहता ने जीत का विश्वास जताया। आज धोवावी जिला पंचायत ने फेरणी दरमियान आ विस्तारना खानपुराना तालुका पंचायत में 2 वखत कांग्रेस पक्षना सभ्य रही चुकेला राजूभाई महंत जो माजी कारोबारी चेरमेन पण छे, भारतीय जनता पक्ष में जोड़ाया है। साथे सेजपुराना सरपंच अने माजी सरपंच एटले जिग्नेशभाई सरपंच अने एमना पिताश्री माजी सरपंच जयंतीभाई वसावा बंने भारतीय जनता पक्ष में जोड़ाया है। छतरालना माजी सरपंच कमलेशभाई वाड़न पण भारतीय जनता पक्ष में जोड़ाया है। एमनी साथे 300 થી 400 જેટલા કાર્યકરો, જેમાં વસાવા સમાજ હોય, ક્ષત્રિય સમાજ હોય, આદિવાસી સમાજ અને માલધારી સમાજ, આ તમામ લોકો ભારતીય જનતા પક્ષમાં જોડાયા છે। તમામને આવકારું છું, અભિનંદન આપું છું અને ભારતીય જનતા પક્ષ ડભોઈ વિધાનસભા ઐતિહાસિક જીત તરફ આગળ વધે છે, એમાં એમનો પણ ફાળો રહેશે એવી અપેક્ષા। गुजरात के भावनगर के तलाजा में कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोहिल ने भारतीय जनता पार्टी पर विधायकों को करोड़ों रुपए में खरीदने बेचने का आरोप लगाया। भावनगर के तलाजा में कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कांग्रेस विधायक कनू बारिया के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान आयोजित सभा में शक्ति सिंह गोहिल ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधायकों को करोड़ों में खरीदने बेचने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री मोदी के नजदीकी होने की बात कहते हुए नए विवाद को जन्म दे दिया है। राज्यसभाની ચૂંટણી આવે ને એટલે ભાજપનો એક ખરીદ વેચાણ સંઘ નીકળે છે, ધારાસભ્યોને ખરીદવા અને નીકળે એટલે ભાવ નક્કી થાય 5 કરોડ, 7 કરોડ, 10 કરોડ, 15 કરોડ અને છેલ્લા દિવસો આવે ત્યારે ભાવ હોય 25 કરોડ રૂપિયાને આવો ટિકિટ આપી મિનિસ્ટર બનાવીએ। 400 રૂપિયાનો બાટલો હતો ને ત્યારે તો એ ગુસ્સે થઈને બાટલાની ઉપર બેહી જતી હતી, રે દેખાતો। હવે બાટલાની સામે જોતા નથી। પ્રધાનમંત્રીના ખૂબ માનીતા છે સ્મૃતિ ઈરાની। હવે એને કી આવો ને જોવો ને તળાજામાં જે બાટલાની વાત કરતા હતા એ કેટલા મળે, આવો 1060 નો થયો। ભારતીય જનતા પાર્ટીના દેખાડવાના અને ચાવવાના જુદા જુદા છે, આ એનું સૌથી મોટું ઉદાહરણ છે। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। किसका होगा गुजरात? 27 साल से राज कर रही भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार सत्ता पर काबिज होगी या कांग्रेस जो उम्मीद लगा रही है कि परिवर्तन होगा, क्योंकि बहुत सारी नीतियों से गुजरात की जनता त्रस्त है, ऐसा कांग्रेस का मानना है। गुजरात की जनता ये मानती है कि नहीं, ये तो 8 दिसंबर को तय होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार बात कर रही है कि इस बार वोट कांग्रेस को मिलने वाले हैं। वहीं
आम आदमी पार्टी गुजरात विधानसभा की सियासत में पहली बार दावेदारी कर रही है, लेकिन सरकार बनाने के दावे लगातार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। ऐसे में जनता भी थोड़ी सी कंफ्यूज है कि आखिरकार हो क्या रहा है, वोट किसे दिया जाए, और वोट किसे दिया जाए वो आपकी जो समस्या है उससे हम सुलझाते हैं सीधे सीधे आपके कैंडिडेट को आप तक पहुंचाकर। आज हमारे साथ है अकोटा विधानसभा से कांग्रेस की ओर से दावेदारी कर रहे ऋत्विज जोशी, जो वडोदरा कांग्रेस के अध्यक्ष भी है। ऋत्विज भाई, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ऋत्विज जोशी के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। यहाँ के कांग्रेस प्रेसिडेंट तो है ही, एआईसीसी के डेलीगेट भी आप रहे हैं, इंडियन यूथ कांग्रेस के पूर्व सेक्रेटरी रहे हैं, एमएस यूनिवर्सिटी के एफजीएस, यूजीएस और वीपी भी रहे हैं। यहाँ की जो सियासत होती है, वहां के जो नेता है वो कहीं ना कहीं एमएस यूनिवर्सिटी से ही निकले हुए होते हैं। ज्यादातर नेता भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे कांग्रेस को हो, वो एमएस यूनिवर्सिटी के जनप्रतिनिधि हमेशा रहे हैं, एनएसयूआई प्रेसिडेंट रहे हैं और एमएस यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई की है। सही कह रही हूँ ऋत्विज जी? सही बात है। चलिए ऋत्विज जी से बात करते हैं। अकोटा विधानसभा से कांग्रेस की ओर से दावेदारी कर रहे हैं। अकोटा एरिया काफी बड़ा एरिया और यहाँ बहुत सारी समस्याएं, कैसे सुलझाएंगे ऋत्विज जोशी और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं इतने सालों तक, 2 टर्म से ये जो सीट है भारतीय जनता पार्टी के पास है, क्या हुआ है विकास? चलिए ऋत्विज जी शुरू करते हैं। अकोटा का एरिया सबसे पहले, और क्या समस्याएं हैं यहाँ की? अकोटा विधानसभा में आप देखिए कि जो समस्याएं यानी पूरे जो वडोदरा शहर में है, वो मेजोरिटी सभी समस्या अकोटा विधानसभा में है। जैसे कि मैं जो कॉरपोरेशन से रिलेटेड जो इश्यूज है, रोड, रास्ते, ड्रेनेज, वाटर, स्ट्रीट लाइट, ये समस्या, क्योंकि मैं जब पूरे अकोटा में जब घूम रहा हूँ वोटिंग के लिए, सबको अपील के लिए जा रहा हूँ, डोर टू डोर हम घूमते हैं, तो बहुत सारे एरिया में हमने देखा कि स्ट्रीट लाइट नहीं है, अगर जो रोड है वो उस पर खड्डे हैं, पानी 2 टाइम का पीने को नहीं मिल रहा है। तो जब हम लोगों के पास जाते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष वाले नहीं पहुंच रहे और हम पहुंच रहे हैं, तो लोग अपने जो दिल की बात है, क्योंकि उनका सुनने के लिए कि अगर कोई गया नहीं है तो वो अपनी पूरी भड़ास हम पे निकालते हैं। वो बताते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, हम शांति से सुनते हैं, चुपचाप पूरा बात सुन के फिर हम बोलते हैं कि आपने जो समस्याएं बताई, इसीलिए परिवर्तन जरूरी है और इस बार आप परिवर्तन लाइए। और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है और उसके जो जनता का जो रिस्पांस मिलता है उससे एक जीत का विश्वास भी बनता है और वो लोग बोल रहे हैं कि इस बार हम परिवर्तन लाएंगे। इस बार परिवर्तन लाएंगे। कांग्रेस पार्टी को पूरे गुजरात में परिवर्तन की उम्मीद है। वैसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है वडोदरा शहर। यहाँ की शहर की जो 5 सीटें हैं काफी वक्त से भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वडोदरा शहर में सुविधाएं देने में नाकामयाब रही है। बहुत सारी समस्याएं, सालों से सत्ता होने के बावजूद यहाँ बुनियादी सुविधाएं नहीं है। दूषित पानी मिलता है लोगों को, कम प्रेशर से पानी मिलता है लोगों को, बरसात में पानी इतना भर जाता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जो नहीं सुलझा पाए हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी कैसे दावा कर रही है कि इन समस्याओं को वो सुलझा पाएंगी? अकोटा की जो समस्याएं आपके सामने आ रही है, कैसे सुलझा पाएंगे? कोई विजन तैयार किया है कि 5 साल में कैसे काम किया जाएगा? देखिए, ये जो समस्याएं है, जो बुनियादी समस्याएं आपने भी जो बताई, जो जनता की समस्या है, और ये कॉरपोरेशन जो हम टैक्स भरते हैं, वो टैक्स के बदले में कॉरपोरेशन को देना है, ये जनता का अधिकार है जी। लेकिन कॉरपोरेशन की जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए सामने, उसके अलावा जो एक विधायक होता है, जो एक एमएलए होता है, उसको भी एक पर्टिकुलर अमाउंट का ग्रांट मिलता है, जिससे अपने अपने एरिया में वो विकास का काम कर सके। दुख की बात यह है कि जो बीजेपी के विधायक थे, उनके 3 करोड़ से भी ज्यादा ग्रांट वापस गई है। यानी जो पब्लिक को, आपको जो पैसे जनता के विकास के लिए, डेवलपमेंट के काम के लिए आपको जो पैसे खर्च करने हैं, अगर वो पैसे वापस चले जाए, ये बहुत दुख की बात है। उसमें जनता के काम नहीं हुए, नुकसान उसमें जनता का हुआ है। तो मैं अगर आने वाले दिनों में, जिसका जैसे कि जीत का भरोसा है, हम पहले तो वडोदरा जो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का वडोदरा है, वो वडोदरा हम वापस लाना चाहते हैं। क्योंकि अभी जो अपने वडोदरा में जो विश्वामित्री नदी है, वो पूरे सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करती है, जिसमें आप अकोटा ब्रिज से अगर उतरे तो विश्वामित्री नदी वहां से भी जाती है। तो अब पवित्र ऋषि विश्वामित्री के नाम से नदी है, लेकिन गटर का पानी जाता है, उससे पूरा आप देखिए कि मच्छर का उपद्रव हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, अलग अलग बीमारियां होती है। वैसे ही अकोटा विधानसभा में दूसरा है गोत्री तालाब। अभी जस्ट मैं वहां से आया हूं, क्योंकि मुझे वहां से किसी ने बताया कि गोत्री तालाब का आप विजिट कीजिए। वो ब्यूटिफिकेशन के नाम पे वहां पे करोड़ों का खर्चा हुआ, लेकिन आज रियलिटी, अगर आपको बीजेपी के कुशासन में
अकोटा विधानसभा में भ्रष्टाचार का अगर कोई आपको एग्जाम्पल देखना है, नमूना देखना है, तो गोत्री तालाब है। एक तरफ भगवान शिव का पवित्र मंदिर, पौराणिक मंदिर है, और वहां पे जो दुर्गंध आती है, वहां पे गंदगी है, गटर का पानी छोड़ा जा रहा है तालाब के अंदर, जिससे बीमारियां फैलती है। तो और वो तालाब के पीछे का जो हिस्सा है, अगर आप उस तरफ पूरा जो गोकुल नगर से लेके प्रिया टॉकीज तक जो रास्ता जाता है, वहां पे जो रोड के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ है, इतना खराब हालत है। अंदर गलियों में जाएंगे तो स्ट्रीट लाइट नहीं है, पानी के इश्यूज है। तो ये सब बातें, जो ये काम जो आपने पूछा कि आप कैसे करेंगे, विजन क्या है, तो विजन एकदम सिंपल है। ये पहले गुजरात में जब कांग्रेस सरकार थी, हमने किया है। हमने वडोदरा में 2 टाइम पानी पीने का उस समय पे आता था, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट थी, लेकिन उस वक्त जनसंख्या बहुत कम थी वडोदरा शहर की, और अब जनसंख्या बहुत बढ़ तो गई है। जनसंख्या एरिया बहुत बढ़ने बढ़ गई है। जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ा है, लेकिन उसके साथ इनकम भी बढ़ा है ना, टैक्स भी मिल रहा है। कोई ऐसा तो है नहीं कि जो टैक्स नहीं भर रहा है, कॉर्पोरेशन तो सबके पे टैक्स ले रही है। तो टैक्स के सामने, यानी जो टैक्स हम भर रहे हैं उसके सामने बेसिक फैसिलिटी क्यों नहीं, जनता का ये सवाल है, और वो हम देंगे। और वो ये कोई उपकार नहीं है, ये पहले कांग्रेस ने किया है और हम फिर से करेंगे 27 साल बाद। अभी बीजेपी 27 साल से शासन में है। लोग परेशान इसलिए, लोग पूछते हैं हमको कि भाई हम जब जाते जनता के पास तो हमने बताया कि जो अकोटा विधानसभा है उसमें मेजोरिटी कॉर्पोरेटर सब बीजेपी के हैं, एमएलए भी बीजेपी के, वडोदरा में सांसद भी बीजेपी के। अगर ये लोगों की इच्छा शक्ति हो तो ये लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति ना होने के वजह से और जो हर काम में जो करप्शन हुआ है उसकी वजह से जनता बहुत परेशान हो गई है। और इसलिए हमने जनता को बोला कि हम जो पुराना वडोदरा है वो हम वापस लाएंगे, और जो आपको जो टैक्स का जो आपका अधिकार है, जो मिलना चाहिए, वो हम आपको देंगे, ये हम उनसे वादा करते हैं। नागरिकों को अधिकार देने की बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए मैं मान लूं अगर कि अकोटा विधानसभा से आपकी जीत होती है, कांग्रेस पार्टी की जीत होती है, लेकिन अगर फिर भी वडोदरा महानगर पालिका की 5 सीट है, 5 सीट कांग्रेस के लिए जीतना आपको पता है कितना मुश्किल है। वडोदरा शहर में भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है स्टेट में और वडोदरा महानगर पालिका में, और वडोदरा महानगर पालिका में तो है ही, और आप अगर चलो चुनकर आते भी हैं तो कैसे लोहा लेंगे इनसे, क्योंकि स्टेट में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन सकती है, यहाँ पालिका में तो है ही। किस तरह से आप ग्रांट जुटाएंगे अपनी विधानसभा की जनता के लिए? एक तो जो गवर्नमेंट का जो हर एमएलए को जो ग्रांट मिलता है वो तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो मुद्दे हैं वो मुद्दे को लेके जनता को साथ में लेके अगर जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन भी करेंगे। जैसे हमने पिछले बहुत आंदोलन ऐसे किए हैं, जैसे आपको मालूम है कि वडोदरा शहर में जो शिक्षा का मुद्दा है, जो स्कूल फीस का जो मुद्दा था, उसमें हम लोगों ने आगे रह के आंदोलन किया, फी रेगुलेशन कमेटी के सामने भी लड़े, बहुत सारे स्कूल में हमने पेरेंट्स को जस्टिस भी दिलाया है। तो ये जो आप बात कर रही है कि अगर मैं जीतता हूं और सरकार नहीं बनती है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार भी हमारी बनेगी, क्योंकि परिवर्तन की एक लहर है पूरे गुजरात में है। अगर वडोदरा में लहर है तो पूरे वडोदरा से ज्यादा तो पूरे हर सिटी डिस्ट्रिक्ट में भी परिवर्तन की लहर है। तो जो जनता के मुद्दे हैं, जो पब्लिक जिसके लिए टैक्स भर रही है, वो मुद्दे के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। पहले तो जो काम जैसे होना चाहिए, फॉर एग्जांपल कि जो अलग अलग एनजीओ है, अलग अलग ट्रस्ट है, इन लोगों को भी हेल्प ले सकते हैं, इनकी भी मदद लेंगे कि अच्छा काम करने के लिए, सोशल वर्क करने के लिए सब लोग आगे आ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो जो टैक्स जहां पे जमा होता है उनकी जिम्मेदारी है, तो वहां से काम निकालेंगे। उसके लिए चाहे आंदोलन करना पड़े और कुछ भी लड़ाई लड़नी पड़े, जनता को साथ में लेके लड़ेंगे और काम करके दिखाएंगे। मैं 27 साल में जो नहीं हुआ है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरे पास कोई अलादीन का चिराग है या रातों रात कोई जादू हो जाएगा, लेकिन मेरी मेहनत और मेरा काम लोगों को दिखेगा, क्योंकि 24/7 अवेलेबल हूं। 22 साल से राजनीति में हूं, एमएस यूनिवर्सिटी से शुरू किया, आज शहर का अध्यक्ष हूं, और ये मेरी जिम्मेदारी है और वो मेरी जिम्मेदारी में निभाऊंगा और जनता की लड़ाई लड़ूंगा, उनके लिए काम करूंगा। जनता की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, जनता के लिए काम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगता रहा है कि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करने में कांग्रेस पार्टी असफल रही है, क्योंकि हमेशा लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब एक मजबूत विपक्ष मिले, एक मजबूत आवाज उठाने वाले मिले। कांग्रेस पार्टी पर और खासकर वडोदरा कांग्रेस पर यह आरोप लगता रहा है कि यहाँ मिलीजुली सरकार चलाई जाती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कई मुद्दों को सेटल कर देती है। कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप हमेशा
हमेशा लगता रहा है। ऋतुष भाई, ये आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा रहता है कि मिलीजुली सरकार चलाते हैं आप, आपके ही नेता हैं, वो कॉर्पोरेशन में बैठते हैं, मेयर के साथ बैठते हैं और सारी चीजों को स्थायी समिति के अध्यक्ष के साथ बैठते हैं और सारी चीजों को अपने स्तर पर हैंडल कर लेते हैं। देखिए, 7 महीने से मैं अध्यक्ष हूं और ये 7 महीने में जनता के मुद्दों की लड़ाई में लड़ा हूं, आंदोलन किए हैं वडोदरा शहर में, अलग अलग महंगाई को लेके, बेरोजगारी, आवेदन दिए जाते हैं लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है। असर ऐसा है कि फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेशन में आपने बताया तो हमारे वहां पे 7 नगर सेवक है, मेजोरिटी बीजेपी की है। आज अगर वो हमारे विपक्ष की नेता है अमीर रावत, जो भी सयाजीगंज से उम्मीदवार है, आपने देखा होगा कि कॉर्पोरेशन में उन्होंने हमेशा वो मुद्दे उठाए हैं, लड़ाई लड़ी है, लेकिन सामने मेजोरिटी के जोर पे वो कांग्रेस की आवाज दबाती है। यहाँ तक कि वो तो बीजेपी तो कांग्रेस को ऑफिशियली विपक्ष का पद देने को भी तैयार नहीं है। यानी क्या ये डेमोक्रेसी है? दूसरा सवाल मेरा, आपके माध्यम से मेरा जनता से भी ये सवाल है कि सत्ता पक्ष में है जो लोग इतने सालों से, उनको क्यों सवाल नहीं? क्योंकि उनको अगर सवाल कोई करता है तो या तो उनको डराया जाता है या उनकी बातों को दबाया जाता है। तो जो डर का माहौल, जो भय का माहौल बना है, इस बार ये माहौल इनका नहीं चलने वाला, क्योंकि जनता परेशान हो गई, त्रस्त हो गई है। क्योंकि और कितने वायदे करेंगे ये लोग, और जो वायदे कर रहे हैं वो पूरे नहीं हो रहे, तो इनके झूठे वायदों से जनता परेशान है। और विपक्ष के अगर आप बात कर रहे हो तो हम लोग जो भी आंदोलन हमने किया, आवेदन पत्र कम दिए लेकिन आंदोलन ज्यादा की है। आप देखिए कि चाहे हमने रोड पे आके, सड़क पे आके, तो तब पुलिस को आगे करके हमको उठा के ले जाते हैं, पुलिस ले जाती है, हमने परमिशन लिया हुआ होता है फिर भी पुलिस आंदोलन नहीं करने देती। तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। तो जिस तरह से सत्ता जाने का भाजपा को जो डर है और जिस तरह से वो कांग्रेस को आंदोलन करने पे रोकती है, तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ये लोकशाही है? भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कील करना चाहती है, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं। लेकिन जनता जो है, हम लगातार जनता के बीच जाते हैं और पूछते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी से परेशान है तो वोट किसे करेंगे? उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, उनके पास एक मजबूत विकल्प नहीं होता है और विकल्प के अभाव में उनका कहना है कि हम वोट आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर करते हैं। चलिए, विपक्ष मजबूत होने की बात है, केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का बहुत सक्षम है, ये आप भी मानेंगे, और केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। राहुल गांधी के नाम पर लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं है। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ जब राहुल गांधी इतनी सक्सेसफुल भारत जोड़ो यात्रा चला रहे थे और वो यात्रा को महाराष्ट्र से लौटा दिया गया। खैर, ये कांग्रेस पार्टी का कोई और विजन है, बहुत सारे नेता इस पर जवाब दे चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी के नाम पर जनता वोट देने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये बात मैं नहीं मानता हूं। और भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से वापस नहीं लौटी, भारत जोड़ो यात्रा अभी भी चालू है, कंटिन्यूस चालू है चरण में। लेकिन अगर वो गुजरात में आती तो लगता है कि नहीं। आप देखिए कि कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक की ये यात्रा है, और जब इस यात्रा का जो प्लान हुआ और जब 7 सितंबर से ये यात्रा शुरू हुई, उसके पहले 5 सितंबर को राहुल गांधी जी गुजरात में आए। यानी यात्रा शुरू होने से पहले साबरमती रिवर फ्रंट पे बहुत बड़ी कांग्रेस पार्टी के जन मित्रों की एक सभा हुई थी, जहां पे आए और महात्मा गांधी का जो वहां पे साबरमती आश्रम है, वहां पे उन्होंने नमन किया, प्रार्थना करके आशीर्वाद लिया। यानी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से पहले वो महात्मा गांधी के आशीर्वाद के लिए गुजरात में 5 तारीख को आए। जब ये यात्रा का प्लान बना, क्योंकि गुजरात में भी चुनाव का साल था, तो आप सोचिए कि इतनी लंबी यात्रा अगर पैदल आना है और एक दिन में 22-25 किलोमीटर चल रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी उसमें सक्सेस मिल रही है, बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं राहुल जी के साथ, उनके विचारों के साथ, क्योंकि जो संकल्प है वो भारत जोड़ने की बात है, इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। तो वो यात्रा का जब प्लान बना, रूट बना, तो उसमें जब देखा कि भाई तब गुजरात में चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा और आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, तो ये सब सोच के गुजरात में यात्रा नहीं आई। लेकिन शुरुआत महात्मा गांधी के आश्रम से 5 तारीख को आए, वहां पे आशीर्वाद लिया और फिर 7 तारीख को यात्रा शुरू की है। आने वाले दिनों में चुनाव के बाद पोरबंदर से लेकर आसाम तक का भी एक दूसरा रूट बन रहा है और वो यात्रा चलेगी। जहां तक आपने बात की केंद्रीय नेतृत्व में, देखिए राहुल गांधी और हमारा जो नेतृत्व है, और उनकी मैं एक आपको बात बोलूं कि ये हमारा नेतृत्व कभी झूठ नहीं बोलता है। दूसरा, हम कभी चुनावी राजनीति के भाई हमको सत्ता जाने का डर या सत्ता में आने का जो लालच, वो हमारे कांग्रेस पार्टी में नहीं है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जब जन्म हुआ था 1885 में, कांग्रेस पार्टी के पास अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। नहीं, तो हम पाने के लिए भी हमारे पास, आप सब समझिए, जैसे वडोदरा में पिछले 2 महीने में
4 बार भाजपा के देश के बड़े बड़े नेता आ गए, कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी आते हैं, विधानसभा में भी आते हैं, तो उनको डर किस बात का है? सत्ता जाने का डर है, इसलिए नहीं आ रहे। और अगर आए हैं तो इस बार पहली बार आपने देखा होगा कि उनका रोड शो भी फेल हुआ, उनके जो पब्लिक मीटिंग हुए उसमें कुर्सियां खाली रही। तो ये बता रहा है कि जनता का इनके ऊपर से भरोसा उठ रहा है। आप अगर कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी आप आएंगे, आप विधानसभा के चुनाव में, यानी ये सत्ता की राजनीति है। और भी बहुत सारे काम है देश में, वो करने चाहिए। लेकिन अगर आप आते भी है, अच्छी बात है, आना चाहिए। सभी पार्टी में सभी नेताओं को अधिकार है अपने नेताओं का प्रचार करने आए, कैंडिडेट का प्रचार करने आए। लेकिन 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आते हैं और उनको जो सत्ता जाने का जो डर है, वो डर बता रहा है कि कितनी बार वो यहाँ पे प्रचार करने आ रहे हैं। हमारे वहां अब देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा छोड़ के राहुल जी गुजरात में 1-2 बार कहीं आए, और भी जगह के डिमांड थे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जो लेके निकले हैं, चुनाव जीतने की लालच नहीं, सत्ता में आने की लालच नहीं, लेकिन जो संकल्प लेके निकले कि भारत जोड़ना है, तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा चालू रखी है, वो बंद नहीं हुई है। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो ये है। भारत जोड़ो यात्रा भी कहीं ना कहीं 2024 के मिशन को लेकर शुरू की गई है, ये बातें सामने आ रही है। लेकिन बात यहाँ ये होती है कि केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करता है, ये लगातार बात सामने आती है। 40 स्टार प्रचारक का काफला भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में उतार दिया है, जबकि 99 सीटें जीते थे भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ लहर है, हवा है, सत्ता है, और कहा जाता है कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी की मुट्ठी में है हमेशा। उसके बावजूद 40 स्टार प्रचारक, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कितने दिनों से यहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं, सभी केंद्रीय मंत्री, सभी राष्ट्रीय प्रवक्ता रोजाना वडोदरा आ रहे हैं, रोजाना गुजरात के अलग अलग शहर जा रहे हैं। मेरा भी सवाल यही था कि किस बात का डर है, लेकिन उनका कहना था कि डर नहीं है, हम चुनाव में हर एक जगह को टच करना चाहते हैं, हमारे मतदाताओं के दिल तक पहुंचना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम आशीर्वाद लेना चाहते हैं, वो तो कहते हैं हम आशीर्वाद लेने आए हैं। चलिए वो अलग बात है। आईबी की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा गया है कि सयाजीगंज और अकोटा विधानसभा बैठक पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो भारी पड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। यह बड़ी बात है, क्या कहेंगे इस पर? अकोटा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी कमजोर आईबी की रिपोर्ट में सामने आ रही है। देखिए, ये जो इनका जो शासन रहा उसमें जो जनता को जो परेशानी हुई है, खास करके मैं बताऊं कि कोरोना की महामारी के बाद जो गरीब और मध्यम वर्ग है, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है, जो दुकान चलाते हैं, नौकरियां करते हैं, उनका जो रोजगार छीना है और जो परेशानी आज हो रही है उनको घर चलाने में, और यानी मैं बोलूं कि इनकम कम है और खर्चा ज्यादा है, आमदनी 98 खर्चा रुपया, ये बात है। तो उससे जनता बहुत परेशान है। और अकोटा विधानसभा में मैंने आपको बताया कि वहां पे कोई विकास का काम हुआ नहीं इतने साल से। वो लोग हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कि गैंडा सर्कल से मनीषा चौकड़ी का ब्रिज 2016 में इसका काम शुरू हुआ, आज चल रहा है 2022, 7 साल हो गए, करोड़ों का खर्चा हुआ है, अभी भी ब्रिज का काम पूरा नहीं हुआ। ऊपर से बारिश में वो ब्रिज के नीचे जो सर्विस रोड, वो सर्विस रोड आप देखिए कि कितने खराब हालत थे, कितने लोग वहां पे, और रोज आज भी इतना ट्रैफिक जाम होता है कि कभी कोई एम्बुलेंस फंस जाती है, कभी किसी को स्कूल जाने में लेट हो जाता है, कोई जॉब पे लेट हो जाता है। तो ये जनता परेशान हो गई है। उन्होंने देखा कि भी इनको बार बार 5 साल दिए, 10 साल दिए, 15 साल दिए, भी 25 साल से एक ही पार्टी के वहां पे एमएलए है, फिर भी अगर काम नहीं हुआ, इसलिए जनता परेशान है। केंद्रीय नेतृत्व तो इनका इसलिए टेंशन में। और आईबी की जो आपने बात की, अभी आईबी स्टेट आईबी तो गवर्नमेंट की है, सरकार उनकी है, तो वहां से मालूम पड़ेगा कि उनके पास से रिपोर्ट कहां से आया। लेकिन मुझे एक बात का मुझे विश्वास ये है कि जनता ने मन बनाया है, परिवर्तन लाना है। क्योंकि मैं जब प्रचार में जा रहा हूं, मैं पिछले लगभग 10 दिन से हर क्षेत्र में अकोटा के हम पैदल जा रहे हैं, हम घर घर जा रहे हैं, हम डोर टू डोर जा रहे हैं। मैं बाहर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है उनके जैसे मैं जीप में बाहर से खड़ा होकर हाथ दिखा के नहीं जा रहा हूं, मैं अंदर जा रहा हूं, उनकी बात मैं सुन रहा हूं, उनके दिल की बात क्या है, उनके मन की बात क्या है, क्या उनको प्रश्न है, वो मैं उनकी बात सुन रहा हूं। जनता को चाहिए कि हमारी बात सुने, ऐसा नेता चाहिए, और वो हम बात जाके सुन रहे हैं। और जब मैं अपनी बात रखता हूं, अपनी बात बोलता हूं, तो मैं इनको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कैंडिडेट की कंपैरिजन करो। मैं कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट हूं ऋत्विज जोशी, बीजेपी से कैंडिडेट जो है, मैं बीजेपी के कैंडिडेट की कोई बात नहीं रखूंगा, लेकिन मैं मेरी बात रखूंगा कि मैं एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली से हूं, मैं एक कर्मकांडी ब्राह्मण फैमिली से हूं, मेरे 7 पीढ़ी में कोई पॉलिटिक्स में नहीं है,
मैंने महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी से मेरी पॉलिटिकल जर्नी शुरू की, 22 साल से हूं और आज भी किसी भी नेता का कुर्ता पकड़े बिना मैं राजनीति में आगे आया और पार्टी ने मुझे अध्यक्ष बनाया और अध्यक्ष बनने के बाद मुझे जो टिकट दिया वो मेरी मेहनत के बलबूते पे दिया। मैं मेरे बाप दादा के नाम से मेरे को टिकट नहीं मिला है, सामने जो कैंडिडेट है उनको कैसे टिकट मिला है सब जानते हैं। दूसरा कि उन्होंने उस अकोटा विस्तार के लिए क्या काम किया ये भी लोग पूछ रहे हैं। शायद ये भी एक मुद्दा हो सकता है कि वो इतने सालों से अकोटा में दिखे नहीं और कोई काम में दिखे नहीं। जैसे कोरोना की महामारी के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता सैनिटाइज करते हुए दिखे, दवाई देते हुए दिखे, हमने लोगों के साथ मानवता से हमने काम किया। ये जो कैंडिडेट है वो आज तक दिखे नहीं। शायद ये भी एक बात हो सकती है कि वो वहां पे, क्योंकि उनको है ये एक अभिमान है, जैसा अभी आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि उनके मुट्ठी में है सब, लेकिन मैं आपको बोलूं कि ये जो बीजेपी को जो अहंकार है, अहंकार अभिमान चढ़ा है कि जनता के सामने हम कोई भी कैंडिडेट रखेंगे वो हमको वोट देंगे और हमको जिताएंगे। अहंकार में कहा जाता है कि अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। तो अहंकार तो रावण और कौरव और कंस का भी नहीं रहा। तो भाजपा का अहंकार इस बार टूटेगा, जनता ने मन बनाया है और इसीलिए मुझे एक फायदा और भी हो रहा है। एमएस यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा फायदा हो रहा है कि जो स्टूडेंट्स ने मेरा काम देखा है, जो मेरे समय के 2001 से लेकर 2007 तक जिन्होंने मुझे एक एज ए लीडर आंदोलन करते देखा है, काम करते देखा है, उनका भी मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। एक एमएसयू स्पिरिट चल रहा है। जब भी जाता हूं कोई मिलता है, सामने से बुलाता है कि आपने ये काम किया था, आपने हमारा ये काम किया था, हम आपको वोट देंगे और एमएसयू स्पिरिट चलाएंगे। ये भी मुझे एक बेनिफिट एमएस यूनिवर्सिटी का हो रहा है और इसलिए एक माहौल बना है। एक मैं एक मध्यम मिडिल क्लास का ब्राह्मण फैमिली का एक निर्व्यसनी उम्मीदवार हूं और मैं जनता के बीच रहने वाला हूं। वडोदरा में लोगों ने मुझे आंदोलन करते हुए देखा है और एक भरोसा मुझे लग रहा है कि जो जनता को एक भरोसा आ रहा है कि नहीं ये हमारे लिए बोलेगा। और मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूं कि विधानसभा में जाके जनता के लिए अगर कोई 2 शब्द ना बोल सके तो आपको कैसा कैंडिडेट चाहिए जो बोल सके? आपकी लड़ाई लड़े वैसा चाहिए या आपको रबर स्टैम्प चाहिए, उंगली ऊपर करे ऐसा चाहिए कि आपके लिए बोलने वाला लड़ने वाला चाहिए? मैं बोलने वाला लड़ने वाला यहाँ पे एक कैंडिडेट हूं, एक आंदोलनकारी इमेज है, लड़ाई लड़ूंगा और ये जनता को मुझे लग रहा है और इसलिए मेरे पर भरोसा रख रहे हैं और इसलिए शायद अकोटा में एक बन रहा है कि कांग्रेस यहाँ पे जीतेगी। कांग्रेस अकोटा विधानसभा पर जीत सकती है, ये दावा कर रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी ऋत्विज जोशी और उनको पूरी उम्मीद है कि जिस तरह का प्रतिसाद मिल रहा है, जिस तरह की समस्याएं सामने आ रही है, इस बार कांग्रेस को वोट अकोटा की जनता कर सकती है। लेकिन होता हमेशा यही है, बातें बहुत सारी होती है, बहुत सारे दावे भी होते हैं, जनता अपनी समस्याओं को बयान भी करती है, लेकिन जब वोट निकलते हैं तब वो भारतीय जनता पार्टी के नाम के निकलते हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है या क्या कह सकते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। जब भी समस्याओं को सुनते हैं लगता है अरे बाप रे कितनी सारी परेशानियां हैं, लेकिन जब वोट पड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी को पड़ते हैं। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि अभी तक जितने चुनाव हुए हैं उसमें हर चुनाव में कहीं ना कहीं मुद्दे से भटका के दूसरे मुद्दे पे जाने का राजनीति हुआ है। लेकिन इस बार जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं 10 घर में जहाँ गया हूं तो 10 घर में से 7 घर में मुझे जो सामने से बात आई है वो बात आई है कि भाई महंगाई से परेशान है, इनके झूठे वादे से परेशान है। तो और हमको लोग सोसाइटी में मुझे बुला रहे हैं, ग्रुप मीटिंग हो रही है, रिस्पांस अच्छा मिल रहा है कि और मुझे बोल रहे हैं कि आप काम करेंगे, आप प्रॉमिस कीजिए आप काम करेंगे, हम परिवर्तन लाएंगे। यानी अभी तक ऐसा 2017 के चुनाव में मैं वडोदरा में घुमा हूं, ऐसा माहौल मुझे नहीं दिखा। इस बार मुझे लग रहा है कि जो चुनाव है वो मुद्दे पे हो रहा है और मुद्दा महंगाई है, मुद्दा बेरोजगारी है और मुद्दा जो वडोदरा की जनता टैक्स भरती है उसके सामने जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये मुद्दा है। जी, अगर समस्याओं पर वोट करे तो शायद इस बार वडोदरा में परिवर्तन देखने जरूर मिल सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पर लोग थोड़ा सा भरोसा कम कर रहे हैं। उसकी वजह यह भी है कि अंदरूनी कलह थोड़ी बार बार सतह पर आ जाती है। राजस्थान में जो चल रहा है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच, वो तो सब देख ही रहे हैं। साथ ही
कांग्रेस अध्यक्ष बनने को लेकर जो विवाद था वो भी पूरे देश ने देखा है। यहाँ भी कुछ ना कुछ सामने आता ही रहता है। और वडोदरा की भी अगर बात करें तो ऋत्विज जोशी के साथ कौन सा नेता प्रचार करता है वो भी मुझे कभी देखने नहीं मिलता है। कौन आपके समर्थन में आता है कांग्रेस पार्टी की ओर से, जबकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत लंबे लंबे दावेदारों की लिस्ट थी, लेकिन जब टिकट एक को मिलता है उसी के साथ सारे प्रत्याशी जुड़ जाते हैं। लेकिन आपके साथ खड़ा हुआ मुझे कोई बड़ा नेता नजर नहीं आता है। आप और अमीर रावत जी दोनों ही लड़ते लड़ते देखने मिल रहे हैं पिछले कई वक्त से। जब से आप अध्यक्ष बने हैं बाकी सारे नेताओं ने कांग्रेस से किनारा किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब नामांकन के लिए गया था तभी भी सभी कांग्रेस के नेता, सीनियर लीडर्स हमारे साथ थे। जैसे कि हमारे रंजीत चौहान साहब है जो एक्स मेयर है चूंकि वडोदरा के, वो मेरे साथ थे। हमारे जो कॉरपोरेटर है बारू सुरवे है, पूर्व विपक्षी नेता है चंद्रकांत श्रीवास्तव भत्तू भाई, फिर हमारे सीनियर लीडर है अनुज पटेल जी, ये सब हमारे साथ आए थे जब नामांकन करने गया। और जब अध्यक्ष बना उसके बाद भी सब सीनियर लीडर्स ने, जैसा भी भिखाबी रबारी है, वो सब हमारे साथ है और सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सबका मार्गदर्शन भी मिलता है, सपोर्ट भी मिल रहा है जी। टिकट आवंटन की जो बात थी कांग्रेस पार्टी की ओर से सेंस ली गई, बहुत सारे उम्मीदवार सामने आए, लेकिन मांजलपुर विधानसभा में जो टिकट दिया गया है वो किस आधार पर दिया गया है ये वडोदरा शहर को समझ में नहीं आया, मीडिया को भी समझ में नहीं आया। क्या इसमें अध्यक्ष का कोई रोल रहता है जब आपने ये टिकट का आवंटन किया होगा? कैसे कोई नया 1-2 दिन में आया हुआ कैंडिडेट आकर वहां टिकट ले लेता है और मांजलपुर में सालों से जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी जमीन बनाई हुई है, जिन्होंने अपना जनाधार बनाया है, उनको पीछे छोड़ दिया है कांग्रेस पार्टी ने? विधानसभा के चुनाव में तो अध्यक्ष का इतना बड़ा रोल नहीं रहता है। हम पैनल भेजते हैं और नाम भी भेजते हैं, लेकिन देखिए अभी चुनाव डिक्लेयर हो गया है, पार्टी ने कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिया और हम आखिरी मोड़ पे है, 5 तारीख को मतदान होने जा रहा है। तो मांजापुर के जो कैंडिडेट है डॉक्टर तस्वीन सिंह, बहुत ही एक अच्छा नया चेहरा है, डॉक्टर है, और उनके साथ भी अभी सभी हमारे कांग्रेस परिवार के लोग सब काम पे लग गए हैं, सब जुड़ गए हैं। जैसे हर विधानसभा में जहां जहां भी जो भी है, परिवार है, बड़ा परिवार होता है, थोड़ी जो भी बातें होती है समस्या, लेकिन उसका सब समाधान हो गया है, सब काम कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं। और अभी तो चुनाव आखिरी मोड़ पे है, जो कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है वही हमारा उम्मीदवार है और उसको लेके ही पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता हर जगह घूम रहे हैं और उनको जिताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए आम आदमी पार्टी की जरूर बात कर लेते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी उन्हीं सीटों पर फोकस कर रही है गुजरात में जहां कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर है, जहां कांग्रेस पार्टी जीतती आई है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सीट पर ज्यादा फोकस नहीं किया है, उन्होंने कांग्रेस की ही सीट को अपने पाले में लेने की कोशिश की है। क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी के बारे में? उनके अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सिर्फ 5 सीटें आप लोग इस बार गुजरात में ला पाएंगे। अभी उनके बारे में मुझे पर्सनली तो कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन जहां तक गुजरात की राजनीति की बात है, गुजरात में कभी भी थर्ड फ्रंट सक्सेस नहीं हुआ है। अब देखिए कि अगर हम बात करें कि जो एक्स सीएम थे शंकर सिंह वाघेला जी, फिर एक्स सीएम थे केशुभाई पटेल, उन्होंने भी अपने अपने अलग पक्ष बनाए थे, तो कभी थर्ड फ्रंट सक्सेस हुए नहीं है। और जिस पार्टी की आप बात कर रही है वो पूरी जनता में एक मैसेज गया है कि ये कहीं ना कहीं, जैसे अभी आपने कहा कि वो जहां पे कांग्रेस की वोट बैंक ज्यादा है, या तो कांग्रेस का कैंडिडेट स्ट्रांग है या सिटिंग एमएलए कांग्रेस का है, वहीं पे वो लोग ताकत लगा रहे हैं। इसका मतलब कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और कांग्रेस को हराना उनका एजेंडा है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि 2017 में जब हम चुनाव हारे, कांग्रेस के पास 77 सीट थे, बीजेपी 99 पे अटक गई थी। सत्ता में आए बीजेपी, लेकिन कांग्रेस जो 13 सीटें थी वो बहुत हम कम वोटों से हारे। तो 2017 से ज्यादा इस बार विरोध है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ही एक स्ट्रेटेजी है और उन्होंने ही जानबूझ के कांग्रेस के वोट शेयर कम हो, कांग्रेस के वोट कम हो, और 2017 में कांग्रेस इतनी नजदीक आ गई और इस बार कांग्रेस सरकार ना बना ले, कि डर की वजह से कहीं ना कहीं भाजपा का ही एक स्ट्रेटेजी ये लग रहा है मुझे। कैसे स्ट्रेटेजी लग गई? अगर आम आदमी पार्टी जिन सीटों पर जीत कर आती है, आम आदमी पार्टी के एमएलए भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी जा पाएंगे। नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि वो उनके एमएलए जीतेंगे। जैसे अभी आपने कहा, पहले आपने भी कहा और मैं भी मानता हूं इस बात को, और जनता भी जानती है कि कांग्रेस के वोट बैंक तोड़ने के लिए ही, जैसे फॉर एग्जांपल अकोटा विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं, तो अकोटा विधानसभा में जहां जहां पे कांग्रेस के वोट बैंक है वहीं पे वो लोग जाके मेहनत कर रहे हैं। वो लोग जहां पे बीजेपी की वोट बैंक है वहां पे वो लोग नहीं जा रहे। तो उनकी कोशिश ये है कि कांग्रेस को नुकसान हो। अगर उनको भाजपा को रोकना है तो उनका वो बिहेवियर वो दिख नहीं रहा है, पब्लिक में भी नहीं दिख रहा है, मीडिया में भी नहीं दिख रहा है, उनके ऐसे कोई स्टेटमेंट भी नहीं आ रहे। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की ये स्ट्रेटेजी हो सकती है।
भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम आम आदमी पार्टी को कहा जाता है, जबकि भाजपा कहती है कि वो कांग्रेस की बी टीम है। खैर किसकी बी टीम है ये तो पता चल ही जाएगा जब रिजल्ट आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। आखिरी एक सवाल ले लेती हूँ, कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन हो सकता है अगर सरकार बनती है तो, और कितनी सीटें? कांग्रेस इस बार सत्ता में आएगी। सरकार में आने के लिए जो भी आंकड़ा हमको चाहिए उससे ज्यादा हमारे पास सीटें आएगी। मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। मुख्यमंत्री देखिए, कांग्रेस पार्टी में आप देखिए कोई भी स्टेट में, जैसा भी अशोक गहलोत साहब यहाँ पे गुजरात में आए थे तो उन्होंने बात रखी थी कि जो इलेक्टेड एमएलए होते हैं वो पूरा, और लीडरशिप जो होती है हाई कमांड, वो सब मिलके जो एक बार एमएलए जो चुन के आए उन सबको विश्वास में लिया जाता है, भरोसे में लिया जाता है, फिर मुख्यमंत्री का जो चेहरा होता है वो डिसाइड होता है। तो ये कांग्रेस पार्टी का पहले से यही रहा है, तो उसी पे हम सीनियर लीडरशिप और जो प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व है वही लोग डिसाइड करेंगे। 77 से आगे बढ़ेंगे कि घटेंगे? बढ़ेंगे, इस बार बढ़ेंगे और 100 से पार होंगे और गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनेगी और वडोदरा में कांग्रेस इतिहास बनाएगी, वडोदरा में कांग्रेस का खाता खुलेगा, ये इस बात का मुझे विश्वास है। वडोदरा में कांग्रेस का खाता खोलने की बात कर रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं है। अब आज तारीख अब काफी नजदीक आ रही है। 5 दिसंबर को वडोदरा वोट करेगा और 8 दिसंबर को परिणाम आएगा। कांग्रेस का क्या होगा ये हम देखेंगे, आम आदमी पार्टी का क्या होगा ये भी हम देखेंगे, और भारतीय जनता पार्टी कितनी सफल होगी। सेंचुरी का दावा कर रहे हैं ऋत्विज जोशी, कांग्रेस अध्यक्ष हैं। ऋत्विज जी, मैं आशा करती हूँ कि जो आप इच्छा कर रहे हैं सही साबित हो, सभी के लिए अच्छे कैंडिडेट आए, भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के हो, चाहे आम आदमी पार्टी के हैं। एक मजबूत जनप्रतिनिधि आपको चुनकर लाना है और इसीलिए हम सीधे सीधे आपको प्रतिनिधि से मिलवा रहे हैं, उनकी बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जब भी आपके घर आए शायद आप उनसे बात और सवाल ना भी कर सके, इसलिए मैंने वो सवाल आपके बिहाफ में किए हैं जो आप जानना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ऋत्विज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहना है। 8 तारीख नजदीक है, 5 तारीख को वोट करना है। चुनाव से जुड़ी हर गतिविधि वीएनएम पर आपको देखने मिलती है। यूट्यूब चैनल है वीएनएम का, सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो जरूर कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि वोट आखिरकार आपको करना है। ये सारी बातें तो आपके लिए हैं। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वीएनएम की खबरों को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।